بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی۔ جو آج ناول شروع کرنا ہے اس کا نام ہے عالم وجد از ارائیں سسٹرز، حفصہ نمرہ۔ یہ کہانی ہے معاشرے اور حالات سے مقابلہ کرنے والی ایک لڑکی کی۔ یہ کہانی ہے ایک مرد کی عورت کو عزت، محبت اور وفا دینے کی۔ یہ کہانی ہے دو ایسے لوگوں کی جو نہ چاہتے ہوئے بھی پاک رشتے میں بندھ کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، اور یہ کہانی ہے ہر اس لڑکی کی جو خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے۔ اشال اشال، اب اٹھ بھی چکو، مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی وقت پر اٹھ جائے۔ کمرے کا حال تو دیکھو ذرا، ایک تو یہ لڑکی اتوار کے آ جائے سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہے۔ آسیہ بیگم اشال کے کمرے کی چیزیں سمیٹتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے جلی کٹی سنا رہی تھیں، مگر اشال پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لحاف میں منہ دیے لیٹی رہی۔ البتہ نیند تو اب خراب ہو چکی تھی، مگر غصہ نکالنے کا اسے کوئی اور طریقہ نہیں ملتا تو وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہنے سے بھی جب نیند نہ آئی تو اکتا کر لحاف ہٹایا اور اٹھ گئی۔ کیا ماما، کبھی تو سکون سے سو لینے دیا کریں، پورے ہفتے میں صرف ایک دن ہی تو ہوتا ہے جب سکون سے سونا ہوتا ہے، مگر ماؤں کو چین ہی کب آتا ہے جب تک جلدی اٹھا کر بٹھا نہ دیں۔ اشال کی کینچی کی طرح چلنے والی زبان اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ بس کرو اشال، اب بڑی ہو گئی ہو، یہ چونچلے چھوڑ دو۔ ہاں جی، اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں، بچپن میں کون سا چین لینے دیا آپ نے مجھے۔ اشال یہ کہہ کر جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس سے پہلے کہ آسیہ بیگم اپنا جوتا اتارتی، جلدی باہر آ جانا، اب ناشتہ لگا رہی ہوں، مجھے مارکیٹ سے کچھ چیزیں منگوانی ہیں۔ یہ کہہ کر آسیہ بیگم باہر چلی گئیں۔ اشال جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی، ناشتہ کیا اور چیزوں کی لسٹ لیے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ چھوٹی چھوٹی گہری نیلی آنکھیں، باریک ہونٹ اور اس کے خوبصورت بھورے لمبے بال جو کمر سے نیچے تک آتے تھے، کھلے چھوڑ رکھے تھے، سیاہ رنگ کی گھٹنوں تک آتی قمیض اور شال گردن کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہ بیگ میں کچھ تلاش کرتے ہوئے تیزی سے چلتی آ رہی تھی جب وہ کسی لڑکے سے ٹکرائی۔ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا تمہیں؟ ایک جیتی جاگتی 5 فٹ 7 انچ کی لڑکی بھی دکھائی نہیں دی تمہیں؟ نظر خراب ہے تو چیک کیوں نہیں کرواتے؟ پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے لے لو، مگر مہربانی کر کے ایسی فضول حرکتیں کرنا بند کر دو۔ یہ فلمی انداز میں لڑکیوں سے ٹکرا کر تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ لڑکی پٹا لوگے؟ اس اچانک حملے پہ وہ بیچارہ کچھ نہ بول سکا، بس ہکا بکا سا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ قریب ہی کچھ فاصلے پر کھڑا لڑکا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ وجیح شخصیت کا مالک، 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، بڑی اور ہلکے بھورے رنگ کی آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، چہرے کی سنجیدگی سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ کوئی اکڑو اور سرل مزاج انسان ہے۔ وہ ان دونوں کی طرف بڑھا جہاں وہ دبلا پتلا سا لڑکا اب معافی مانگ رہا تھا، مگر وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ محترمہ، وہ آپ سے معافی مانگ چکا ہے، اب جان چھوڑ دیجیے اس بیچاری کی، خود بھی جائیں اور اسے بھی جانے دیں۔ وہ جو مسلسل چلا رہی تھی اس آواز پر خاموش ہو کر اسے گھورنے لگی۔ ایسے میں دبلا لڑکا آنکھ بچا کر نکل گیا۔ او ہیلو مسٹر، آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں کوئی بھی ہوں، صرف آپ کو روک رہا ہوں کہ ایسی حرکتیں کرنا، وہ بھی اس مارکیٹ میں ایک لڑکی کو زیب نہیں دیتا۔ اور وہ معافی مانگ چکا تھا، آپ بلا وجہ بات کو بڑھا رہی تھیں، جائیں اب یہاں سے۔ اس کے چہرے کا تاثرات سخت پڑ چکے، وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی وہ وہاں رکا نہیں اور فوراً گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ رکا تو وہ چپ نہیں رہے گی۔ ارد گرد سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور اس بات نے اسے مزید مشتعل کر دیا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، دماغ میں بار بار اس لڑکی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، گویا ابھی گاڑی ہوا میں اڑنے لگے گی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا اور تب تک نہیں اٹھایا جب تک گیٹ کھل نہیں گیا۔ گاڑی سے اترا تو منو من غصہ بیچارے فضلو پر اتار دیا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ کب سے ہارن بجا رہا ہوں، کام کی طرف دھیان ہو تو کچھ سنائی دے۔ وہ پیر پٹکتا اندر کی جانب چلا گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں مسز سرفراز صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھونٹ گھونٹ چائے پی رہی تھی۔ اسے غصے سے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا، لیکن آواز نہیں دی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بیکار ہے۔ غصے میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا، بس کچھ دیر تنہا رہتا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کمرے میں جا کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا، شوز اتار کر زور سے دوسری جانب پھینکے، بیڈ پر پڑے تکیوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا، بازو میں پہنی گھڑی اتار کر زور سے پٹکی جو صوفے پر ابھر کر زمین پر جا گری۔ غصہ اس قدر تھا یوں لگتا تھا جیسے ابھی ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ کچھ دیر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھا رہا، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اٹھ کر بات کی طرف چلا گیا۔
इशाल घर पहुंची तो आयजा जो उसके इंतजार में बैठी थी जल्दी से उसकी तरफ लपकी। कहाँ थी? सुबह से कितनी बार कॉल की तुम्हें, अटेंड करने की जहमत भी नहीं की। आयजा सांस तो लेने दो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, अब तुम शुरू हो जाओ। सेल में घर भूल गई थी। इशाल जो बहुत बेजार हो चुकी थी बैग और चीजें एक तरफ रख कर धब से सोफे पर बैठ गई। क्यों मोहतरमा, आज किस बेचारे की किस्मत फूट गई? आयजा जो सेल वाली बात पर गुस्सा थी, इशाल की हालत पर अब कह कहे लगाने पर मसरूफ थी। पता नहीं कौन बदतमीज था, फजूल में दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने आ जाते हैं लोग। और तुम अब दांत अंदर करो वरना गुस्सा तुम पर उतार दूंगी सारा। आसिया बेगम जो किचन से उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी बाहर आईं। हाँ, बस यही एक काम आता है तुम्हें, इतनी बार मना किया है कि बाहर तमीज से रहा करो, ना लोगों से फजूल पंगे लिया करो। मजाल है जो इसके कान पर जूं तक रेंग जाए, ससुराल में भी नाक कटाओगी मेरी। उफ, एक तो हमारी माँ को छोटी छोटी बातों पर बेटी के ससुराल में नाक कट जाती है। आयजा जो काफी देर से चुप बैठी सुन रही थी एकदम कहकहा लगाकर हंसी। बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसी साल शादी कर देनी है तुम्हारी। आसिया बेगम गुस्से से तिल मिला रही थी। ठीक है आंटी, इस मामले में मैं भी आपके साथ हूँ, जल्दी से बस अब इसकी शादी कर दें। हाय आशी, कितना मजा आएगा तुम्हारी शादी में। इशाल ने कुशन उठाकर आयशा को दे मारा। नहीं करनी मुझे कोई शादी, मैं यही रहूंगी हमेशा। अब खत्म करें इस फजूल बात को और खाने को कुछ दे दें, बहुत भूख लग रही है। ये कहकर वो फ्रेश होने रूम की जानिब चली गई। बाबा, बाबा, मैं छुप रही हूँ, आप मुझे ढूंढें। चलो ठीक है, मैं 10 तक गिनूंगा, जल्दी से छुप जाए मेरा बेटा। इशाल जल्दी से भागी और सीढ़ियों के नीचे मौजूद थोड़ी सी जगह में घुसकर बैठ गई। वो जब भी अपने बाबा के साथ खेलती तो अक्सर यहीं छुपा करती थी। छुपने के बाद इशाल ने बाबा को लंबा खींचते हुए आवाज लगाई। बाबा, आ जाएं, मैं छुप गई। दानिश साहब जानबूझकर थोड़ी देर उधर उधर आवाजें लगाते, ढूंढने के से अंदाज की अदाकारी करते, फिर अचानक जाकर इशाल को गोद में उठाते और खुशी से जीत का नारा लगाते। आहा, मैंने ढूंढ लिया अपने प्यारे से बेटे को। दानी साहब हमेशा इशाल को यूं ही बेटा कहकर मुखातिब करते थे। क्योंकि उनकी और कोई औलाद न थी तो इनका कुल सरमाया इशाल ही थी। उन्होंने हमेशा इसे बेटों की तरह ही ट्रीट किया था। इशाल ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, बाबा, आप मुझे हमेशा ढूंढ लेते हैं, ऐसा क्यों है? कहीं आप चुपके से आंखें खोलकर मुझे छुपता हुआ तो नहीं देख लेते? इशाल के चेहरे पे जमाने भर की मासूमियत थी। अच्छा, तो आपका मतलब है कि आपके पापा बेईमानी करते हैं? नहीं बाबा, मैंने ऐसा नहीं कहा। इशाल फौरन से परेशान हुई। मैं तो बस पूछ रही थी कि आप मुझे हर बार इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेते हैं। इशाल अब हंसी लग रही थी। दानिश साहब उसकी मासूमियत पर कहकहा लगाए बगैर ना रह सके। बताएं भी बाबा, आपको पता है इशाल कि आप मेरी रूह का हिस्सा हो और रूह कभी जिस्म से जुदा नहीं रह सकती। अगर ये जुदा हो जाए तो इसके बाद सिर्फ मौत होती है। इसीलिए आप कहीं भी छुप जाओ, मैं आपको फौरन से ढूंढ लेता हूँ। मैं ज्यादा देर आपको दूर कर ही नहीं सकता। आप कहीं भी खो जाओ, मैं ढूंढ लूंगा। मेरी रूह मुझे आप तक ले जाती है। इशाल जो बहुत खामोशी से ये सब सुन रही थी शायद ज्यादा समझ नहीं पाई थी, मगर फिर भी उसे लगता था कि बाबा कोई बहुत प्यारी बात कर रहे हैं और वो हमेशा से ही उनकी बातों को इसी तरह इन हमाक से सुनती थी। फिर चाहे वो उसे समझ में आए या ना, मगर वो जहन नशीन जरूर कर लेती थी। चलें बाबा, अब आपकी बारी, आप छुपें और मैं ढूंढूंगी आपको, वो पुरजोशी होकर बोली। आज उसका दिल चाहा था कि वो भी देखे कि बाबा कैसे ढूंढ लेते हैं। जल्दी से उनकी गोद से उतरी और आंखें बंद करके गिनती गिनने लगी। 10, 9, 8। मैं आ गई बाबा। इशाल जल्दी जल्दी हर वो जगह चेक करने लगी जहां वो छुपती थी, मगर 5 मिनट गुजर जाने के बाद भी उन्हें ढूंढ ना पाई तो परेशान सी होकर आवाजें देने लगी। बाबा, कहाँ छुपे हैं आप? खुद ही आ जाएं, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं। दानी साहब जो गैलरी की दीवार की ओट में खड़े थे बाहर आ गए। बाबा, आप यहाँ थे? इशाल रुहासी हुई। मैं आपको क्यों नहीं ढूंढ पाई? अब वो सच में बहुत परेशान लग रही थी। मोबाइल की घंटी बजी तो इशाल ख्यालात की दुनिया से वापस आई। उसकी आंखों में नमी थी। अभी मोबाइल नंबर अननोन उठाया नहीं था कि जब एक और मैसेज रिसीव हुआ। इशाल ने मोबाइल देखा तो एक नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इनबॉक्स खोला तो मैसेज पढ़कर चेहरे के तासुरात बिगड़े। आज जो हुआ सो हुआ। आइंदा अगर कभी मैंने आपको ऐसा कुछ करते देखा तो इंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। वो एकदम चौंक कर सीधी हुई और गौर से स्क्रीन देखते हुए नंबर पहचानने की नाकाम कोशिश करने लगी। अगले ही लम्हे एक और मैसेज आया। नंबर का पता करवा सकती हैं तो खुशी से करवाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है आपको। नंबर से मैसेज नहीं आया था, ये पहली दफा ऐसा हो रहा था। और वह इन लड़कियों मी अननोन इशाल को कभी
में से हरगिज़ नहीं थी जो ऐसी छोटी-छोटी बातों से घबरा जाएँ या डर जाएँ या किसी की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ जाएँ। वो इशाल मलिक थी, उसे बोलना आता था। वो डरने वालों में से नहीं बल्कि डराने वालों में से थी। वो मोबाइल को ऐसे घूर रही थी जैसे मैसेज करने वाले का मैसेज नहीं बल्कि वो खुद सामने मौजूद हो। आज जो कुछ हुआ वो इशाल दोबारा मैसेज पढ़कर सोचने के अंदाज में बोली, कहीं वो लड़का जो मुझसे टकराया था? नहीं, नहीं, वो नहीं हो सकता। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ? खुद ही अपने ख्याल की तरदीद की। अचानक से उसके ज़हन में वो चेहरा आया, वो सड़ियल जो टाँग अड़ाने आया था। ओह शिट! ये वही है। लेकिन ये है कौन? और इसके पास मेरा नंबर? पता करवाती हूँ इसका। बड़ा आया, ज़्यादा ही सर चढ़ रहा है। मान न मान मैं तेरा मेहमान। हुँ, अकड़ू सड़ियल, बदतमीज़ गधा। मुझे पहले ही भूख लग रही और मज़ीद एनर्जी इस फ़ज़ूल इंसान पर ज़ाया की। वो इसे मुख्तलिफ इल्क़ाबात से नवाज़ती, सेल रखकर रूम से बाहर निकली और किचन की जानिब बढ़ गई। सरफराज बेगम, सबीहा बेगम और अर्दुल खाने की मेज़ पर मौजूद थे। सरफराज साहब अर्दुल से ऑफ़िस के काम के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। वो तीन लोग ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ थे, मगर खाने की मेज़ पर हमेशा सब मौजूद होते। एक दूसरे को वक्त देना जैसे उन पर फ़र्ज़ हो गया था। ख़ास तौर पर उनके वीकेंड्स मुकम्मल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली के लिए होते। आम तौर पर देखने में आता है कि अमीर फैमिलीज़ में जब घर का हर फ़र्द मसरूफ़ हो, तो वो खुद को इस कदर मसरूफ़ियत में गुम कर लेता है कि एक दूसरे को वक्त देना तो दूर की बात, कई-कई दिन एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं करते। एक घर है तो दूसरा ऑफिस। कोई एक किसी दिन फारिग हो तो उसी दिन दूसरा किसी काम के बर्डन से थक हार सोने में मसरूफ होता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अर्दिल और सरफराज साहब की गुफ्तगू खत्म हुई तो सबीहा बेगम ने अपनी बात का आगाज किया। मैं सोच रही थी कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो चुके हैं। दानिश भाई की फैमिली का कुछ पता नहीं और इनकी डेथ पर यह भी नहीं जान सके थे हम। वो घर भी तब्दील कर चुके हैं। अब जल्द से जल्द इन्हें ढूंढें। हमें अब अपना फर्ज अदा करना चाहिए। सरफराज साहब ने उनकी बात से इत्तफाक किया। मैं भी काफी दिन से ये बात करना चाह रहा था। क्यों अर्दिल, तुम क्या कहते हो? सरफराज साहब ने अर्दिल को मुखातिब किया, जो उनकी बात सुनने के साथ साथ कुछ सोच भी रहा था। मुझे पता है वो लोग कहाँ रह रहे हैं। अर्दिल के इस इंकशाफ पर दोनों उसे हक्का बक्का देखने लगे। मैं थोड़ा वक्त लेना चाहता था, इसीलिए आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इन बातों से एक बार फिर अर्दिल का मूड सख्त खराब हो गया। वो मजीद कोई बात किए बगैर माजरत करता उठ गया। वो और आयजा यूनी में बैठे क्लास के किसी काम की डिस्कशन कर रही थी कि अचानक एक लड़का उनके पास आ बैठा। ये फाइज था, जो शुरू दिन से इशाल को पसंद करने का दावेदार था, मगर इशाल को वो एक आंख ना भाता था। कैसी हो इशाल? इशाल ने अबरू उचकाकर उसे देखा। मैं बिल्कुल ठीक। फाइज की भतीसी बाहर आ गई। आप कैसे हैं फाइज भाई? फाइज की बाहर आती भतीसी यकदम अंदर हो गई। आयजा ये सब कार्रवाई देखकर कहकहा लगाने लगी। फाइज भाई, आपकी तो इंसल्ट हो गई। आयजा हंसते हुए कहने लगी। फाइज का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। इशाल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे भाई मत कहा करें। तो भाई को भाई नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? इशाल ने बमुश्किल हंसी छुपाई। दुनिया के सारे मर्द आपके भाई हैं सिवाय मेरे। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा शोहर मेरा भाई नहीं है। फाइज हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि फाइज भाई, मेरा निकाह हुआ है और मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ। तो आप अब समझदार हैं, समझ गए होंगे। उसने बेहद संजीदगी से कहा। फाइज कुछ देर खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा और कुछ कहे बिना वापस पलट गया। इशाल ने सुक्का सांस लिया। शुक्र है जान छूटी, आज से हमेशा के लिए। आयजा उसका चेहरा देखकर मुस्कुराई। बहुत ड्रामेबाज हो तुम इशाल। इशाल हंस दी। यार, ये मर्द बड़ी उल्टी चीज का नाम है। ये तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इन्हें जवाब ना दे दो। लड़की जब ढील दे तो ये पीछे आते हैं, वरना इतनी हिम्मत कहाँ इनमें। अगर एक ने जवाब दिया तो दूसरी के पीछे, ये इनकी फितरत है। और इशाल मलिक इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली लड़की नहीं है। मैं अपने बाबा मामा का बेटा और उनका फखर हूँ। आयजा उसे देखकर मुस्कुरा दी। मुझे फखर है कि इतनी अच्छी सोच वाली लड़की मेरी दोस्त है। वो तो मैं हूँ। दोनों ने कहकहा लगाया और कैंटीन की तरफ चल पड़ी। इशाल यूनिवर्सिटी से निकल रही थी जब उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन कान से लगाए वो गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ फोन पर आयजा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। आशी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। दिल कर रहा है उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन आ नहीं सकती, अभी घर में बहुत काम है। इशाल गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी। अस्तगफिरुल्लाह, सांस तो ले लो। हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी या यूं ही पहेलियां बुझवाती रहोगी? हाँ हाँ, बता रही हूँ। तुम भी सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई है। कल सुबह 8 बजे जाना है और कल तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, तुम मेरे साथ चलोगी। आयजा ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। बहुत बहुत मुबारक हो मोहतरमा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम इसी तरह मेरा नाम रोशन करती रहो। इशाल ने चहक कर कहा। आयजा अभी कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने आवाज दी।
अच्छा, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, बहुत काम है, कल सुबह तैयार रहना, भूल ना जाना। ये कहकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। इशाल ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ गई। आसिया बेगम अपने कमरे में कोई चीज़ तलाश कर रही थीं, जब अचानक इशाल ने पीछे आकर इन्हें गले लगाया। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जान। आसिया बेगम मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आ गया। कैसा रहा आज का दिन? बिल्कुल ठीक। आप क्या कर रही हैं? इशाल ने अलग होते हुए कहा। कुछ ढूंढ रही थी। अच्छा बताओ, खाना लगाऊं? दोपहर का खाना वो बनाकर रखती थीं और जब इशाल यूनी से लौटती तो मिलकर खाती थीं। जी मामा जान, मैं बस फ्रेश होकर अभी आई, फिर हम मिलकर खाना खाते हैं। इशाल ये कहकर अपने रूम की तरफ चली गई। आसिया बेगम ने खाना लगाया। आज उन्होंने इशाल की फेवरेट बिरयानी बनाई थी, जो कि उसके लिए सरप्राइज थी। इशाल थोड़ी देर बाद नीचे आई, डिश का ढक्कन उठाया तो खुशी से आसिया बेगम से चिमट गई। आपका ये बिरयानी सरप्राइज हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू। आसिया बेगम मुस्कुरा दी। अच्छा चलो अब बस करो, जल्दी से शुरू करो, ठंडी हो रही है। इशाल ने जल्दी से अपनी सीट संभाली। आज वो बिरयानी से खूब इंसाफ करने वाली थी। खाने के दौरान आयजा के इंटरव्यू के बारे में याद आया। मामा कल मैं यूनी नहीं जाऊंगी, आयजा के साथ जाना है मुझे। किधर जाना है तुम दोनों ने? मामा जान, वो आयजा को जॉब की ज़रूरत है, अब जानती हैं, बस वो घर में सबसे बड़ी है तो सब उसे ही देखना पड़ता है। आयजा के बाबा भी विशाल के बाबा की तरह इस दुनिया में नहीं रहे थे। घर में बड़ी बेटी होने के नाते सब जिम्मेदारियां उसके ऊपर थीं, तो वो पार्ट टाइम जॉब का सोच रही है। आज ही से उसे एक बहुत अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई है, बस इस सिलसिले में उसके साथ जाना है। आसिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए। बाप का साया सर पर ना रहे तो बेटियां कितनी मजबूर हो जाती हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। मामा आप ऐसे रोएंगी तो मुझे कौन संभालेगा? मजबूत बने, मैं हूं ना आपके साथ। वो जानती थी कि उसके बाबा के चले जाने के बाद आसिया बेगम कितनी अकेली पड़ गई थी। उसके बाबा का बिजनेस की दुनिया में एक नाम रहा है, इसीलिए इन्हें इस लिहाज से कोई मसला ना था। लेकिन वो ही इन दोनों का दुनिया में वाहिद सहारा थे। वो बहुत ख्याल रखने और प्यार करने वाले शौहर और बाप साबित हुए थे, लेकिन जिंदगी ने इनको इतना मौका नहीं दिया कि वो इनकी हर ख्वाहिश खुद पूरी कर पाते। माँ के आंसू पहुंचती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर साइड टेबल पर पड़ी अपनी और बाबा की तस्वीर उठाई, सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा जान, मामा बहुत अकेली हैं, आपका इशाल बेटा भी बहुत अकेला है। हम दोनों एक दूसरे से आंसू छुपाती हैं, बज़ाहिर हम एक दूसरे को संभाले हुए हैं, मगर अंदर से हम दोनों ही बहुत बिखरी हुई हैं। एक दूसरे को दिखाने को हम मजबूत बनती हैं, लेकिन बाबा हम दोनों की जिंदगी आपके बगैर कुछ नहीं है। जब एक बेटी बाहर निकलती है, उसके सर पर बाप का सहारा होता है, बाप का हाथ होता है जो मुआशरे से बचाता है, जमाने के सर्द गर्म हालात से बचाता है। लेकिन बाबा जब मैं बाहर निकलती हूँ तो बहुत गलत नजरों के जवाब देने के लिए मजबूत बनती हूँ, पर मैं बहुत टूटी हुई हूँ बाबा। वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी। बचपन का वही मंजर फिर से आंखों के सामने लहराने लगा। इशाल का छुप जाना, दानी साहब का ढूंढ लेना, इनकी वो सब बातें जो इशाल पूरे शौक और तवज्जो से सुनती थी। बाबा देखिए ना, आपका बेटा बिल्कुल अकेला है। आप तो कहते थे कि आप मुझे कहीं से भी ढूंढ लेंगे। आज मैं इस दुनिया की मुश्किलात में गुम हो गई हूँ। आप मुझे अब क्यों नहीं ढूंढते बाबा? मैं तो ना आपको बचपन में ढूंढ पाती थी और ना अब, लेकिन आप तो ढूंढते थे ना बाबा, फिर आज क्यों नहीं? वो ऐसे ही रोते रोते लेट गई और पता नहीं कब आंख लगी। आयजा पिछले आधे घंटे से इशाल को उठा रही थी, पर वो तो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। जलील औरत, मुझे पता था तुम्हारा यही करना है तुमने, इसीलिए मैं घंटा पहले आ गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो मुझे यहाँ भी मजीद घंटा लगवाओगी। इशाल खबीस, उठ जाओ। मगर इशाल मोहतरमा आदत से मजबूर जाग भी जाए तो उठना नहीं। अल्लाह करे तुम्हें वो हस्बैंड मिले जो वक्त का पाबंद हो, खूब तुम्हें वक्त के लिहाज से सूली पर लटका के रखे। आमीन। आयजा गुस्से से सोफे पर बैठ गई। इशाल फौरन उठ बैठी। क्या क्या बकवास की तुमने? दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ भी ना दो। वो अपने बाल समेटती उसे घूरते हुए बोली। तुम इसी काबिल हो आशी, देख लेना तुम्हें ऐसा ही शोहर मिलेगा। आयजा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अब उठो, तैयार हो जाओ जल्दी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इशाल उसे सलवाते सुनाती वाशरूम की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद तैयार होकर निकली तो सामने बैठी आयजा, जो बार बार घड़ी देख रही थी, उसे निकलते देखकर जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगी। तो इशाल ने आवाज दी। एक मिनट रुको, बता तो दो मैं कैसी लग रही हूँ? इशाल ने चढ़ाने वाले अंदाज में पूछा। आज उसने सफेद रंग की लंबी कमीज और हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा गर्दन के गिर लपेट रखा था और स्याह रंग की जैकेट पहन रखी थी। हम कोई तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जा रहे, अब चुपचाप चलो। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि रिश्ता लेकर जा रहे हैं? वैसे भी रिश्ता लड़के वाले लेकर आते हैं। इशाल को पता था इस वक्त आयजा गुस्से में थी, उसे तंग करने में मजा आ रहा था और इशाल ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। सीढ़ियां उतरकर वो दोनों नीचे आईं।
आसिया बेगम वहीं टीवी लाउंज में ही बैठी थी। उन्हें आता देखकर उसकी तरफ बढ़ी। अच्छा मामा, हम जा रही हैं, इशाल ने माँ को गले लगाते हुए कहा। आंटी दुआ कीजिएगा, आयजा ने मुस्कुराकर कहा। आसिया बेगम ने उसको भी गले लगाया। अल्लाह मेरी बच्ची को कामयाब करे। आमीन, तीनों मुस्कुरा दी। अच्छा इशाल, अब नाश्ता बाहर से कर लेना, याद से, तुम पहले ही आयजा को बहुत देर करवा चुकी हो। इशाल ने मुंह बसोर कर कहा। मामा, आप मेरी मामा हैं या इस चुड़ैल की? आयजा ने जोर से कहकहा लगाया। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, चलो अब ध्यान से जाना और लेट मत करो। और इशाल, गाड़ी आहिस्ता चलाना, और खुदारा किसी से लड़ना मत। आसिया बेगम की हदायत शुरू हो चुकी थी और इशाल मोहतरमा दान दिखाती माँ का चेहरा चूमकर बाहर निकल गई। अल्लाह हाफिज मामा। इस बात का साफ इशारा था कि कोई गलत काम करेगा तो इसका कुछ नहीं बचने वाला। आसिया बेगम ने दुआ पढ़कर इन दोनों को ख्याल में लाकर फूंक दी। अल्लाह इस लड़की को हदायत दे, वो बस दुआ ही कर सकती थी। इशाल ने गाड़ी स्टार्ट की और वो ही अपनी आदत के मुताबिक देर होने पर गाड़ी हवा में उड़ाना। खुदा का खौफ करो इशाल, एक तो जल्दी तैयार नहीं होती तुम, फिर गाड़ी इतनी स्पीड से चलाती हो। अभी मुझे अपने बॉस से तो मिल लेने दो, सुना है बहुत हैंडसम है वो। अब तुम इस तरह गाड़ी चलाकर मेरे अरमानों का खून न करना। दोनों ने जोरदार कहकहा लगाया। एक तो तुम्हें हर दूसरा बंदा हैंडसम ही दिखाई देता है। वो शुरू के दिनों में फाइज भी तो तुम्हें बड़ा हैंडसम दिखाई देता था और तुम्हारा फेवरेट था, इशाल ने उसे छेड़ते हुए कहा। हाँ था, लेकिन फिर जब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा मेरा तो मतलब ही खत्म हो गया। आयजा ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा, अब ये फजूल बातें छोड़ो और दुआ करो मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए। दोनों ने बैक वक्त आमीन कहा। वो अपने ऑफिस रूम से निकल रहा था कि उसे इशाल नजर आई, जो एक वर्कर से बहुत गुस्से में लड़ रही थी। इशाल को देखते ही उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। ये यहाँ क्या कर रही है? और यहाँ भी लड़ाई? वो मुंह ही मुंह में खुद से बड़बड़ाया। उसकी जानिब बढ़ा। मोहतरमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाकी वर्कर्स जल्दी से अपने अपने कामों की तरफ मुतवज्जा हो गए। इशाल ने एक लम्हे में उसे पहचान लिया। तुम वही बदतमीज इंसान हो ना? तुम्हें सुकून नहीं, हर जगह आ जाते हो। एक मिनट, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। अर्दिल ने उंगली के इशारे से उसे चुप करवाया। इशाल, जो अपनी धुन में बोलती जा रही थी, एकदम उसके सख्त लहजे पर चुप हो गई। उसने इर्द गिर्द देखा। वर्कर्स एक बार फिर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। उसने इशाल को बाजू से पकड़ा और तकरीबन खींचने के अंदाज में अपने ऑफिस रूम की तरफ लेकर बढ़ गया। दरवाजा खोलकर उसने इशाल की बाजू को गुस्से से झटका दे के छोड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गुस्से से फुंकारा। इशाल उसे हक्का बक्का देखे जा रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इशाल मलिक। वो मजीद हैरान हुई। इसे मेरा नाम कैसे पता? बर वक्त इशाल ने अपने आप को संभाला। अपने शोहर से मिलने आई थी, उसने तिनक कर जवाब दिया। एक लम्हे में अर्दिल के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? क्या लगते हो तुम मेरे? आज तक किसी मर्द की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इशाल मलिक के सामने कोई जुर्रत करे, और तुम अनजान मर्द मुझे यूं ट्रीट कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते हो। अर्दिल ने गहरी सांस ली। न जाने क्यों वो इशाल के साथ ये सख्त रवैया अपनाए रखता था। शायद उसकी बदतमीजी की वजह से, या उसे अच्छा नहीं लगता था इशाल का यूं बाहर जाना और लोगों का उसकी तरफ मुतवज्जा होना, या किसी मर्द के साथ बहस करना। वो खुद भी अपने दिल की कैफियत से नावाकिफ था। अर्दिल चलता हुआ उसके पास आया। हाँ, सही कहा, मैं कौन होता हूँ ये सब करने वाला? उसने इशाल की बाजू को सख्ती से पकड़ा और झटके से अपने करीब किया। इशाल मलिक, एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम मुझे आइंदा यूं बाहर किसी से बदतमीजी करती नजर आई या जुबान दराजी करती नजर आई तो मैं वो कर जाऊंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। और यह महज धमकी नहीं है, मेरी ये बात याद रखना। उसके बाजू को सख्ती से पकड़ने से और उसके इस रवैये पर उसकी नीली आंखें आंसुओं से भर गईं, और इसी लम्हे अर्दिल ने उसकी आंखों में देखते ही उसका बाजू छोड़ दिया। वो आज तक किसी से नहीं डरी थी, लेकिन आज पहली बार वो डर गई थी। कौन था वो शख्स जो उसका नाम भी जानता था और इतने इस्तेहकाक से उसे डांट भी रहा था? वो खुद से सोच रही थी। मैं जो मर्जी करूं, तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? इशाल भी कहाँ हार मानने वालों में से थी। वो अपनी बाजू को पकड़कर बोल रही थी, जो उसके इतनी जोर से पकड़ने पर दर्द कर रही थी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो, मुझे तुमसे शदीद नफरत है। जहर लगते हो मुझे। वो गुस्से से कहती उसके ऑफिस से निकल गई। अर्दिल ने मुठियां बेंची। खामोशी से जाकर कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। तुम्हें मैं जल्द बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, वो खुद से बड़बड़ाया। उसकी आंखों के सामने इशाल के आंसुओं वाला चेहरा आया। उसने एकदम आंखें खोली। उफ, क्या हो गया है मुझे? उसने सर झटका। इशाल, जो तेजी से बाहर जा रही थी, सामने एक आदमी से टकराई। सॉरी कहती वो बाहर निकल गई। उस आदमी ने मुड़कर देखा। ये तो दानिश मलिक, मेरे दोस्त की बेटी थी। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकते थे? ये अर्दिल के ऑफिस से निकली। वो कभी अर्दिल के ऑफिस को देखते तो कभी उस रास्ते को जहाँ से इशाल गुजरी थी। बाहर निकली थी कि उसको आयजा मिल गई। आयजा ने उसे घूरा। कहाँ थी तुम? सारा ऑफिस मैंने छान मारा, तुम कहाँ चली गई थी? परेशान कर दिया तुमने मुझे।
अब तंग आकर मैं यहाँ इंतजार कर रही थी कि शायद कुछ खाने चली गई हो। आयजा अंदर इंटरव्यू देने गई थी, तभी इसकी एक वर्कर के साथ झड़प हो गई, और झड़प की वजह भी वो वर्कर था। उसने एक दो दफा इशाल के ऊपर कमेंट्स पास किए थे, और तभी अर्दिल ने उसे देख लिया था। आयजा, मेरा सर दर्द हो रहा है। आयजा परेशान हो गई, क्योंकि उसने आज तक इशाल को इस तरह गुमसुम नहीं देखा था। सब ठीक है आशी, बताओ ना। वो जानती थी कुछ होगा भी तो वो कभी जाहिर नहीं कर पाएगी। हाँ, चलो जल्दी, बहुत भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं खाने। वो अपने आप को संभालती गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो यहाँ से गुम हो जाना चाहती थी। अर्दिल ऑफिस रूम से बाहर निकला। उसने इसी वर्कर को बुलाया। 2 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस में आओ। वर्कर डर गया था, क्योंकि अर्दिल को गुस्से से हर कोई डरता था। वो डरते हुए अंदर गया। मे आई कम इन सर। अर्दिल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ रखा था। कम इन। आइए जीशान साहब। जी सर, सब ठीक है। अर्दिल हनूस इसी सिमत खड़ा था। बाहिर जिस लड़की से बहस कर रहे थे, कौन थी वो? सर, मुझे नहीं पता, बहुत बदतमीज लड़की थी। ऐसी लड़कियों को तमीज होती नहीं, कहीं भी बदतमीजी करने लगती हैं। अर्दिल ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची। तमीज से जीशान साहब। वो इतनी गरजदार आवाज में बोला कि जीशान बुरी तरह से डर गया। क्या तुमने उस पर घटिया कमेंट्स पास नहीं किए थे? क्या इन कमेंट्स की वजह से उसने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की? तुम लोग क्या समझते हो, मुझे बाहर किसी चीज का इल्म नहीं? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि हर लड़की की इज्जत होती है? तुम जिस तरह दूसरों की इज्जतों पर मजाक करते हो, कल को कोई तुम्हारी इज्जत पर मजाक नहीं करेगा। बेटियां सबकी एक सी होती हैं जीशान साहब। किसी की बहन बेटी की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। सर, आई एम सॉरी। अर्दिल चलता हुआ उसके पास आया। इसमें शायद कुछ प्रिंटिंग की गलती है। कुछ पेजेस पे दोबारा से वही सेम स्टोरी लिखी हुई है, जो पीछे रिपीट हो चुकी है। यानी कि जो मैं पढ़ चुकी हूँ और जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। आगे से ये यहाँ से शुरू हो रही है, और जो नेक्स्ट सीन है वो यहीं से शुरू हो रहा है, और स्टोरी यहाँ तक पहुँची है कि इशाल को पता चल चुका है कि अर्दिल जो है वो उसका फियांसी है। बचपन में ही उनकी बात तय हुई है, और अब उससे शादी की बात जो है वो चल रही है। तो आगे से शुरू कर लेते हैं। तखय्युल दर तखय्युल, किसी की याद में गुमसुम। हवाएं सर्द रक्सा थी मेरे आंगन में हर जानिब। सरूर दर्द पिन्हा था हवा के सर्द झोंक, जो शामिल थे मेरे जस्दे नापायदार में हर चंद। वो खारे जीस्त सब के सब, अजब ही कर्ब में मुझको किए थे मुब्तला कल शब। मेरी आंखें जो पत्थर थीं तो चश्मे भी उमड़ आए। बहुत ही मन्नतें मानी मगर बेसूद हर काविश। ना मेरा गम ही टलता था, ना पिछला पहर ढलता था। मिर्ज़ा नदीम आकाश। इशाल आयजा को उसके घर छोड़कर अपने घर आई। आसिया बेगम से मिलने के बाद अपने कमरे में गई। बैग रखकर खुद गिरने के अंदाज में बेड पर बैठी। अर्दिल शाह, जिंदगी और तुम्हारे साथ इम्पॉसिबल। तुम किसी और दुनिया के बाशिंदे हो और मैं किसी और। हम दोनों एक कभी नहीं हो सकते। तुमसे शादी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं इस शख्स से शादी नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। वो मुख्तलिफ कैफियत में घिरी बड़बड़ा रही थी। साइड टेबल पर पड़े उसके बाबा के फोटो फ्रेम पर उसकी नज़र पड़ी। इशाल लम्हा भर को रुक गई और गहरी सांस ली। फोटो फ्रेम को पकड़े उससे बातें करने लगी। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं उस शख्स के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? मैंने आपकी ज़िंदगी में कभी आपके किसी फैसले पर इनकार नहीं किया, पर आज बाबा आप मुझे बेबस कर गए हैं। मैं मामा को भी जाकर इनकार करूं तो डर जाती हूँ। कैसे करूं? अगर मामा को मेरी बातों से तकलीफ पहुंची, आप होते तो मैं आपको फौरन कह देती, पर मामा तो पहले ही अकेली हैं, उन्हें कैसे कहूँ? फिर एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद बचपन में ही खड़ी कर दी गई थी, अब तक वो मजबूत हो चुकी है। मगर मामा बहुत खुश हैं, मैंने उनकी आंखों में उम्मीद देखी है। मैं कैसे उनकी उम्मीद तोड़ दूं? बाबा, आप मुझसे इतनी दूर चले गए हैं कि मैं खुद चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकती, और ना आप मेरे पास आ सकते हैं। आपने इतना फासला तय कर लिया हम दोनों से इतनी जल्दी। क्यों बाबा? इस उम्र में हर बेटी को अपने बाप भाई की ज़रूरत होती है, एक मर्द के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। पर बाबा, आप तो खफा हो गए हैं। मैं किससे अपने लाड उठवाऊं? मैं किसके सामने अपनी शिकायतें करूं? बाबा, इस वक्त ये फैसला बहुत मुश्किल है। मैं क्या करूं? वो तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। बहुत खूबसूरत सी जगह थी जहां दानिश खड़े थे। इशाल इनको ऊंची आवाज में पुकार रही थी। बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? बाबा आ जाए ना, नहीं मिल रहे मुझे आप। वो मुंह बसोड़ते बोली, जब अचानक दानिश ने आकर इशाल को पीछे से डराया।
इशाल डर कर मुड़ी और उन्हें घूरने लगी। बाबा, डरा दिया मुझे। कहाँ थे आप? वो उनका बाजू पकड़कर बोली। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको कुछ ख्याल नहीं है। मैं और मामा बिल्कुल अकेले हैं, घर चलें अब आप मेरे साथ। वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामा। मेरे बेटे, मैं अपनी जगह जा रहा हूँ, आप अपनी जगह जाओ। मामा का ख्याल रखो, उन्हें तंग मत करना, और वो जैसे कहें बस वैसे करना। वो कुछ गलत नहीं करेंगी, उनकी हर बात मानना। वो प्यार से उसे समझा रहे थे, जबकि इशाल सर को नफी में हिला रही थी। नहीं बाबा, घर चले ना प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है, मामा को आपकी जरूरत है। बाबा चले ना प्लीज। वो नरमी से उसका हाथ छोड़कर अचानक कहीं गायब हो गए। इशाल रोते हुए उन्हें ऊंची आवाज में पुकारने लगी। बाबा जान, आप फिर चले गए। बाबा जान। उसका रोना बढ़ता जा रहा था। अचानक उसकी आंख खुली, सामने आसिया बेगम उसे उठा रही थी। वो कब अपने बाबा की तस्वीर से बातें करते सो गई थी, उसे पता भी ना चला। आसिया बेगम उसकी आंखों में देखकर पहचान गई थी कि वो रोई है, और वो क्यों रोई है वो उसके हाथ में तस्वीर देखकर समझ गई थी। उन्होंने नरमी से उसका माथा चूमा। बाबा की याद आ रही है? उसने सर झुका लिया। मामा, बाबा इतनी दूर क्यों चले गए? वो आसिया बेगम के कंधे पे सर रखकर रो दी। उन्होंने नरमी से उसके बाल सहलाए। विशाल, हम सबको लौटकर अल्लाह की तरफ ही जाना है। ये जिंदगी उसकी अमानत है, और अपने वक्त पर हर किसी को ये अमानत वापस करनी है। आपके बाबा इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाए थे, बस उनके लिए दुआ किया करो। हम सब ने एक दिन उधर जाना है, एक ना एक दिन हम जरूर उनसे मिलेंगे। उन्होंने उसके आंसू पहुंचे, और उनका इशाल बेटा तो बहुत बहादुर और मजबूत है ना। उसने बच्चों की तरह सर हिलाया। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा। उन्होंने इसके बाल पीछे किए। मामा, वो आसिया से रिश्ते की बात करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके जहन में उसके बाबा की बातें आईं जो उन्होंने उसे ख्वाब में कही थी। बोलो बेटा। आसिया बेगम ने उसे नरमी से पुकारा। उसने नफी में सर हिलाया। मुझे भूख लगी है। वो मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि वो बात बदल गई है, पर अभी वो पूछने पर भी कभी ना बताती, इसीलिए खामोश हो गई। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, और अब मेरा बेटा रोएगा नहीं। वो ये कहकर नीचे चली गई। इशाल मुस्कुरा दी और फ्रेश होने वाशरूम की तरफ चली गई। रात के खाने पर अर्दिल, सबीहा बेगम और रमशा मौजूद थे। सरफराज साहब इशाल के घर से वापसी से ही काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा चुके थे। रमशा खाना खाने के दौरान मुसलसल कोई ना कोई बात करती रही। सबीहा बेगम उसकी बातों के जवाब दे रही थी, जबकि अर्दिल खामोशी से खाना खा रहा था। उसका दिमाग मुसलसल कोफ्त का शिकार था। रमशा की कंपनी उसे हमेशा कंफर्टेबल कर देती थी, आई थिंक इनकम्फर्टेबल कर देती थी, ये लिखा है। और सबीहा बेगम इस बात से बखूबी वाकिफ थी। खाना खत्म हुआ तो सबीहा चाय बनवाने का कहकर किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि रमशा जल्दी से खड़ी हो गई। आंटी, आज मैं चाय बनाती हूँ। सबीहा बेगम रुकी और मुस्कुरा कर बोली। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम मेहमान हो, मैं बनवाती हूँ चाय। रमशा हमेशा से ही अर्दिल के दिल में जगह बनाने के लिए नए नए टोटके आजमाती रहती थी। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? अपने घर में भला कौन मेहमान होता है? आप बैठे, मैं बस अभी आई। सबीहा मुस्कुराई और वापस बैठ गईं। रिमशा किचन की तरफ बढ़ गई। अर्दिल, जो कि नीचे मुंह किए बेजार सा मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, उठ खड़ा हुआ। मामा, मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में जा रहा हूँ, मेरी चाय वहीं भिजवा दीजिएगा। मैं आपकी भांजी की मजीद फजूल गुफ्तगू नहीं सुन सकता। वो ये कहकर बाहर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रमशा चाय के 3 कप उठाए वापिस आई। अर्दिल को गायब देखकर सबीहा से मुखातिब हुई। आंटी, ये अर्दिल कहाँ गया? वो जरा लॉन में कुछ देर टहलने गया है। ओह अच्छा, चले मैं चाय वहीं दे आती हूँ। सबीहा बेगम ने जल्दी से उसे रोकना चाहा। नहीं बेटा, तुम बैठो, आराम से पियो, मैं फजलू के हाथ भेज देती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, मैं दे आती हूँ। वो तो जैसे मौके की तलाश में थी, और सबीहा उसे रोक भी नहीं पाई। अब इन्हें अर्दिल के रवैये की फिक्र थी। इशाल चाय का कप उठाकर लान की तरफ बढ़ गई। अर्दिल चेयर की पुश्त से टेक लगाए आसमान की तरफ देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम था। रिमशा ने आकर गला खंकारा। अर्दिल एकदम सोच से बाहर निकला। रमशा को देखते ही माथे पर बल पड़ गए। आपकी चाय। उसने कप अर्दिल की तरफ बढ़ाया। थैंक्स। फजलू कहाँ था, उसे भेज देती। अर्दिल ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा। मैंने सोचा चाय मैंने बनाई है तो क्यों ना मैं ही दे आऊं। वैसे क्या सोच रहे थे तुम कि मेरे आने का पता भी नहीं चला? कुछ खास नहीं, अर्दिल ने बेजार से लहजे में कहा। अच्छा, एक बात पूछूं? मना करूंगा तो रुक जाओगी क्या? संजीदगी से कहा। वो ऐसा ही साफ गो था। पूछो, अर्दिल ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। रमशा उसके खुश्क लहजे के बावजूद हमेशा ढिठाई का मुजाहिरा करती रहती। शादी कब करोगे? आई मीन कि अब तो पढ़ाई भी कब की पूरी कर चुके हो। अर्दिल ने
अर्दिल इस सवाल पर चौंका, मगर उसे बावर करवाना लाजमी समझा कि खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो के अंदाज में कहा। बहुत जल्द। रमशा इस गैर मुतवक्का जवाब से कश्मकश में मुब्तला हुई। अच्छा, कोई पसंद आ गई है क्या? हाँ, पसंद तो बहुत पहले से थी, मगर ठीक वक्त के इंतजार में था। अर्दिल उसकी आंखों में देखकर बोला। चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट ने रिमशा को हैरानगी और खुशफहमी के मिले जुले तासरात में मुब्तला कर दिया। अर्दिल तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता, तो आज ये मुस्कुराहट। वो मजीद मुतजस्सिस हुई। अच्छा, कौन है वो? रिमशा ने बेचैनी से पूछा। बस थोड़ा इंतजार करो, जल्द पता चल जाएगा। वो ये कहकर चाय का आखिरी घूंट भरता उठ खड़ा हुआ। रमशा उसे जाते हुए देखती रही, इस बात से बेखबर कि अर्दिल की जिंदगी में आने वाली वो नहीं बल्कि कोई और है। रात देर तक जागने के बाद इशाल अभी तक सो रही थी। आज इतवार था तो आयजा उससे मिलने चली आई। आसिया बेगम सारे काम निपटा कर टीवी लाउंज में बैठी कोई टॉक शो देख रही थी जब घंटी की आवाज सुनाई दी। नसीमा, जरा देखो तो दरवाजे पे कौन है। वहीं बैठे बैठे उन्होंने आवाज लगाई। नसीमा वापस आई तो साथ में आयजा भी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक बेटा, आसिया बेगम ने उसे गले लगाते हुए कहा। आशी नजर नहीं आ रही? यकीनन अभी तक सो रही होगी, आयजा ने हंसते हुए कहा। हाँ बेटा, काफी दिन से शायद शादी की बात को लेकर ज्यादा ही सीरियस हो गई है। तुम ही पूछो उससे, शायद तुम्हें खुलकर बता दे। आसिया ने परेशान होते हुए कहा। आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैं आ गई हूं ना, समझाती हूँ उसे, ठीक हो जाएगी वो। आयजा ने तसल्ली दी और इशाल के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आयजा ने खुद ही दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे में जाते ही पर्दे हटाए तो अचानक तेज रोशनी से इशाल की आंख खुल गई। इशाल, अब उठ भी चुको, 11 बज रहे हैं और कितना सोना है। इशाल रोशनी के बाईस आंखें नहीं खोल पा रही थी। थोड़ी देर बाद ठीक से सामने का नक्शा जाहिर हुआ। उसकी आंखें रात भर जागने से सूजी हुई लगती थीं। इशाल, तुम सारी रात जागती रही हो ना? आयजा फिक्रमंदी से बोली। इशाल कोई भी जवाब दिए बगैर उठ बैठी। मैं जानती हूँ इशाल, तुम अर्दिल की वजह से परेशान हो। खुद पर जब्त के बावजूद इशाल की आंखें डुबडुबा गईं। कभी कभी हमें दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी के अल्फाज की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा जो हमें सुन सके, खामोशी से, तसल्ली से, और फिर अपने अल्फाज से हमें दिलासा दे सके। और इशाल के लिए वो सब कुछ आयजा थी। आसिया बेगम से वो दिल की बात कम ही करती थी। वो इन्हें अपनी वजह से किसी भी परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। इशाल, अब तुम ऐसे रोगी तो अपनी बात खुलकर कैसे बता सकोगी? चलो शाबाश, रोना बंद करो और मुझे बताओ, क्या बात तंग कर रही है तुम्हें? हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। इशाल कुछ देर खामोशी से आंसू बहाती रही। आयजा यूं ही इसे दिलासा देती रही। आयजा, तुम्हें पता है ना मैं किस किस्म की लड़की हूँ। वो अर्दिल, मामा ने उसे बचपन के बाद अब देखा है। और जरूरी नहीं कि इंसान हमेशा बचपन जैसा ही रहे। होगा वो अच्छा तब, पर अब नहीं है। इस कदर सख्त मिजाज, रोक टोक करने वाला। सबसे बढ़कर हमारा मिजाज बिल्कुल अलग है। मगर मामा को ये बात कौन समझाए? वो तो इसे अब भी बचपन वाला अर्दिल समझ कर बैठी हैं। उन्होंने इसका ये रूप नहीं देखा। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने मामा को आज से पहले इतना पुरसुकून कभी नहीं देखा जितनी वो अब हैं। पिछले चंद दिनों से मैं उन्हें इनकार करके उनका सुकून कैसे छीन लूं? अब तुम बताओ, कोई रास्ता है तो, जिससे मामा परेशान भी ना हो और उस अकड़ू से मेरी जान भी छूट जाए। देखो इशाल, मैंने इस दिन तो तुमसे ये बात कह दी थी कि किसी के बारे में इतने कम वक्त में अंदाजा नहीं लगाते, मगर मेरा अपना दिल नहीं मान रहा कि तुम किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। 3 मुलाकातें तो हो चुकी हैं और हर बार उसका रवैया ऐसा ही था, दूसरों पर बिला वजह रोब डालने वाला। इससे यही जाहिर होता है कि ये उसकी फितरत में शामिल है। और फितरत कब बदलती है? मैं भी परेशान हूँ उस दिन से। तुम कहो तो मैं आंटी से बात करके देखूं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है वो समझ जाएं। ठीक है, मगर आज नहीं, मैं थोड़ा और वक्त लेना चाहती हूँ, 1-2 दिन तक करना बात। इशाल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। चलो ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने बैक वक्त इंशाल्लाह कहा। इशाल और आयजा यूनिवर्सिटी से निकलकर गाड़ी की तरफ जा रही थीं जब फाइज ने पीछे से आवाज दी। इशाल, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, तुमसे कुछ कहना है। फाइज के इस तरह बीच रास्ते मुखातिब करने पे इशाल को गुस्सा आया, मगर जब्त कर गई। वो तकरीबन गाड़ी के करीब पहुंच चुकी थी। ये क्या तरीका है किसी को मुखातिब करने का? आयजा गुस्से से गोया हुई। मुझे इशाल से बात करनी है, तुम जाओ 2 मिनट प्लीज। अर्दिल किसी काम के सिलसिले में इस तरफ आया था। पार्किंग एरिया में इशाल और आयजा को फाइज के साथ देखकर गुस्से और हैरानगी से गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ बढ़ा। जो भी बात करनी है आयजा की मौजूदगी में करो, ये कहीं नहीं जाएगी। इशाल अपना जब्त खो रही थी। फाइज अब बदतमीजी पर उतर आया था। चलो आयजा। इशाल ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो फाइज ने हाथ मार के जोर से बंद किया।
इशाल का चेहरा दूसरी जानिब होने के बाइस वो फाइजा के तासुरात नहीं देख पा रही थी। फाइज और आयजा ने तंजिया मुस्कुराहटों का तबादला किया। अर्दिल ने फाइज को गुस्से से दूसरी तरफ धकेला और गिरेबान से पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी हरकत करने की? फाइज इस गैर मुतवक्का हमले पर घबरा गया। एक बात कान खोल कर सुन लो फाइज, आइंदा तुम अगर मुझे मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि पूरा इस्लामाबाद देखेगा। इसे महज धमकी मत समझना, जहन में बिठा लो ये बात, वरना अगली सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह कहकर अर्दिल ने फाइज के कॉलर को झटके से छोड़ा। निकल जाओ अब यहाँ से। फाइज तेजी से वहां से गायब हो गया। वैसे वो आपकी बीवी नहीं है, अभी आपको कोई हक नहीं है कि इस तरह बीच रास्ते खड़े होकर बगैर किसी रिश्ते के हक जताएं। आयजा तिल मिलाकर बोली, इशाल से मेरा रिश्ता तब से है मोहतरमा जब आपको इसका पता भी नहीं था। मेरा इस पे हक जताना ना जताना मेरा मसला है, और रही बात बीवी होने की, तो इशाल मेरी इज्जत मेरा मान है। और यकीन करें, आप जैसी दोस्त होगी तो मुझे इशाल की ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। अर्दिल ने तंजिया अंदाज में कहा और इशाल से बगैर कुछ कहे वापस पलट गया। इस सब पर वो पहली बार खामोश थी। न जाने क्यों उसे अर्दिल में एक महफूज सा साया नजर आया था, मगर उसने अपने ख्याल की नफी की और सर झटक कर गाड़ी में बैठ गई। आयजा इशाल के इस रवैये को लेकर काफी बेचैन लग रही थी, मगर चुप रही। वो इशाल को शक में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। ओ तो मतलब कि इसकी जो फ्रेंड है आयजा, वो ठीक नहीं है। मैं उसे काफ़ी सिंसियर फ्रेंड समझ रही थी। ये जो बीच में से कुछ पेजेस मिसिंग है ना, इसने स्टोरी को ना थोड़ा सा वो कर दिया है, वरना स्टोरी बहुत अच्छी है। चलें, अब जो भी है जैसा है उसे कबूल करना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि आयजा क्या चीज़ है इसमें। घर आते ही अर्दिल ने तकरीबन चिल्लाने के अंदाज में सबीहा को आवाज़ दी, मामा कहाँ हैं, जल्दी आएं, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। सबीहा बेगम अर्दिल को इस तरह गुस्से से चिल्लाते देखकर परेशान हो गईं। क्या हुआ अर्दिल बेटा, खैरियत है? बाबा कहाँ हैं, मुझे आप दोनों से बात करनी है। शोर की आवाज़ से रमशा भी कमरे से बाहर आ गई। बेटा बाबा बाहर गए हैं किसी काम से, आने वाले हैं। मगर हुआ क्या है, कुछ बताओ भी। सबीहा बेगम की परेशानी बढ़ रही थी। मामा आप लोग आज ही इशाल की तरफ जाएं और शादी की डेट फिक्स करें। मगर बात क्या है, इतनी अचानक ये ख्याल कैसे आया? इशाल से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं मामा, मेरी कोई बात नहीं हुई इशाल से। रमशा को सामने देखकर अर्दिल ने खुद को संभाला। करनी तो है ना शादी, बस आप लोग जाएं आज ही। अर्दिल कोई और बात सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा आ जाएं तो बात करती हूँ उनसे। अर्दिल जवाब पाकर कमरे की तरफ चला गया। रमशा हक्का बक्का ये सब देखती रह गई। इशाल कौन है और डेट फिक्स, ये कब हुआ? क्या रिश्ता तय हो चुका है और मुझे खबर ही नहीं? ये सब सवालात उसके जहन में चल रहे थे। इससे पहले कि वो सबीहा से कोई सवाल करती, वो किचन की तरफ चली गई। रमशा अभी तक सोच में गुम थी। वो गुस्से और सदमे की कैफियत से गुजर रही थी। इतनी आसानी से तो मैं अर्दिल को किसी का होने नहीं दूंगी। बचपन से अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है अर्दिल शाह, और अब तुम्हें ऐसे ही किसी और के हाथ दे दूं? इम्पॉसिबल। वो गुस्से से पैर पटकती वापस कमरे की तरफ चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। अर्दिल अपने कमरे में बेड पर लेटा बेमकसद छत को घूर रहा था। उसके जहन में आज दिन में होने वाला वाकया और आयजा की फाइज की जानिब तंजिया मुस्कुराहट उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। बात सिर्फ फाइज की होती तो कोई बड़ा मसला नहीं था, मगर अब बात आयजा की थी, जिस पर इशाल अंधा एतमाद करती थी। वो इशाल को आने वाली किसी भी मुसीबत से बचाना चाहता था। वो उसे किसी भी कीमत पर खोने को तैयार नहीं था। इन चंद हादसाती मुलाकातों में वो फिर से इशाल के लिए वही बचपन वाला पॉजेसिव अर्दिल बन गया था। उसे हर परेशानी से बचाने वाला अर्दिल, उसके मसले सुलझाने वाला अर्दिल, उसका सबसे बेहतरीन दोस्त अर्दिल। आज उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो इशाल से इतना अरसा दूर क्यों रहा। न जाने कितनी मुश्किलात उसने अकेले काटी होंगी। मैं उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ क्यों नहीं था, ये सोचकर उसे तकलीफ हो रही थी, शदीद तकलीफ। आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कुर्ब से आंखें मींच लीं। ऐसी तकलीफ का एहसास आज उसे पहली बार हो रहा था। मगर अब और नहीं। मैं मजीद इशाल को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब मैं कोई दुख तकलीफ उसके करीब भी नहीं आने दूंगा। मैं उसे दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा। मैं जानता हूँ अभी एक और तकलीफ से इशाल को गुजरना है। जब उसे आयजा की यह हकीकत पता चलेगी तो वो बिखर जाएगी, मगर मुझे इशाल को समेटना है, उसे संभालना है। मैं उसकी हर तकलीफ का साथी बनूंगा। वो एक मजबूत लड़की है, जल्दी संभल जाएगी। आई लव यू इशाल, आई लव यू सो मच। तकलीफ ही तकलीफ थी जो अर्दिल को अंदर तक जख्मी कर रही थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जल्द तुम्हें अपने पास ले आऊंगा।
सबीहा ने सरफराज से मशवरा किया और अर्दिल का इरादा बताया। सरफराज ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। दोनों ने आसिया बेगम से बात करने का फैसला किया और वो अगले दिन उनके घर आने की और अगले दिन उनको घर आने की इतला दी। उधर आसिया ने इशाल को कल की तैयारी के मुतालिक हदायत दी और अपने कमरे में चली गईं। इशाल ने परेशानी के आलम में आयजा का नंबर मिलाया और उसे सब बता दिया। पता नहीं अब कल वो क्यों आ रहे हैं। आदिल के रवैये से लग रहा था कि वो जरूर कुछ करेगा। अब बताओ आयजा, मैं क्या करूं? अभी बात भी नहीं की मामा से। अगर उन्होंने शादी की बात कर ली तो? शादी की बात पर आयजा के माथे पर बल पड़ गए। इशाल, तुम इनकार कर दो अभी। आयजा ने घबराकर जवाब दिया। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि अगर इशाल इस वक्त देख लेती तो उससे कुछ भी छुपा ना रहता। इशाल जरा हैरान हुई। आयजा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? खैरियत तो है? सब ठीक है ना? इशाल अब परेशान लग रही थी। नहीं नहीं इशाल, मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारी वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। तुम कहो तो मैं आंटी से बात करूँ अभी? इशाल इसका ये अजीब रवैया समझ नहीं पा रही थी। इस वक्त मामा परेशान हो जाएंगी। मैं उन्हें आराम से समझाना चाहती थी आयजा। अचानक से उन्हें कहीं सदमा नहीं पहुंचा सकती। आयजा खामोश हो गई। मजीद बहस करना इशाल को शक में मुब्तला कर सकता था। सो चुप रही और प्लान ए को तर्क करके अब प्लान बी के बारे में सोचने लगी। ठीक है इशाल, अब सो जाओ तुम। कल मैं आती हूँ, फिर देखते हैं। और अब सारी रात सोच सोच कर खुद को हलकान ना करती रहना। इशाल जबरदस्ती मुस्कुराई और खुदाफिज बोलकर फोन रख दिया। बेचैनी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने उठकर वजू किया और नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाए। मैं बहुत बेबस हूँ। मैं किसी भी हाल में मामा को अपनी वजह से परेशानी में नहीं डालना चाहती। अल्लाह ताला, आप तो जानते हैं ना कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। बेशक आप हर बात का इल्म रखने वाले हैं। मैं नहीं जानती कि वो शख्स कैसा है। जितनी बार भी सामने आया है उसका एक अजीब सा रुख देखा है मैंने। मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर पा रही। मैं क्या करूं अल्लाह ताला? बस आप मेरे लिए वो कर दें जो मेरे लिए बेहतर है, जिसमें मेरी वजह से मेरी मामा को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। बस फिर वो आपका कोई भी फैसला हो, मैं इस पर राजी हूँ, क्योंकि आप अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा उन्हें इस चीज़ से नवाजते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो, उनकी बेहतरी हो। अल्लाह ताला मुझे भी वही अता कर दें जो आप चाहते हैं। आमीन। दुआ मांगकर उठी तो वो खुद को बहुत पुरस्कून महसूस कर रही थी। जैसे जो भी हो रहा है वो सब कुछ अच्छा है। अर्दिल के चेहरे पे आज अलग ही चमक थी। वो बहुत खुश लग रहा था, जैसे ना जाने कितनी सदियों का बोझ दिल से उतरने जा रहा हो। जिस बात का फैसला वो पिछले 2 सालों में नहीं कर पाया था, उसी बात का फैसला एक दिन में हो गया था और ये ज्यादा पुरसुकून था। अर्दिल तैयार होकर नीचे आया तो लाउंज में बैठी रमशा के माथे पर बल पड़ गए। अर्दिल ने एक नजर देखा और इग्नोर करता बाहर की जानिब बढ़ गया। सबीहा और सरफराज तैयार होकर निकले तो रमशा को इस तरह बैठे देखकर सबीहा उसकी जानिब आई। बेटा, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तैयार नहीं हुई? नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप लोग जाएं। रमशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ बेटा? ज्यादा तबीयत खराब है तो बताओ, पहले डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। सबीहा परेशान लग रही थी। नहीं नहीं आंटी, मैंने टैबलेट ले ली है, कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना, हम इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएंगे। वो ये कहकर बाहर की तरफ बढ़ गईं, जहां गाड़ी में अर्दिल और सरफराज उनका इंतजार कर रहे थे। आयजा सुबह ही सुबह पहुंच गई थी। वो मुकम्मल तैयारी के साथ आई थी। इशाल को हर किस्म के शक से दूर रखने के लिए वो उसके हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। उसी ने इशाल का ड्रेस और हल्की फुल्की मैचिंग ज्वेलरी निकाली थी, क्योंकि आसिया उसे अच्छे से तैयार होने की खास ताकीद करके गई थी। विशाल ड्रेस पहनकर निकली तो आयजा ने ही उसे तैयार किया। आयजा उसकी खूबसूरती और किस्मत से हसद के मारे मुश्किल मुस्कुरा पाई। मैं जरा खाने का इंतजाम चेक कर रहा हूँ। आयजा जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अर्दिल और उसकी फैमिली नीचे लाउंज में बैठे आसिया बेगम से बातों में मसरूफ थे। अर्दिल की कॉल आई तो वो एक्सक्यूज करता उठ गया। कॉल बंद हुई तो पानी पीने की घर से किचन की तरफ चला गया। वहां आयजा किसी से फोन पर बात कर रही थी कि अचानक आहट पर जल्दी से फोन बंद किया। आप कुछ चाहिए था आपको तो नसीबा से कह देते। आयजा का रंग उड़ा हुआ था। नो थैंक्स, मैं बस पानी पीने आया था। मगर आप काफी घबराई हुई लग रही हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आयजा ने बामुश्किल खुद को संभालते हुए कहा। अर्दिल पलटने ही वाला था कि आयजा ने पीछे से आवाज दी। मुझे आपसे इशाल के बारे में बात करनी है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगी। ओह जी, बताएं किस बात पर हैरान करना है आपको मुझे? अर्दिल तंजिया मुस्कुराया। वैसे तो आप मुझे पहले भी बहुत दफा हैरान कर चुकी हैं, एक बार और सही। आयजा घबराई मगर खुद को संभालते हुए बोली। इशाल जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं। अच्छा, तो फिर कैसी है वो? अर्दिल के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया और इस बात ने आयजा को मजीद मुश्तल कर दिया।
میں 10 سال سے اس کے ساتھ ہوں، اس کا کردار صاف نہیں ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ کیسی دوست ہو تم؟ اپنی دوست کے ہونے والے شوہر کے سامنے اسے بد کردار کہہ رہی ہو؟ مجھے اس کے کردار کی گواہی کم سے کم تم جیسی نیچ اور مطلبی لڑکی سے ہرگز نہیں چاہیے، اور آئندہ اس کے بارے میں ایسی بات کرنے سے پہلے 100 نہیں بلکہ 1000 دفعہ سوچنا۔ اور اگر کچھ بکواس کرنی ہے یا بس پلان فیل ہو گیا۔ اردل مٹھیاں بھیجتے ہوئے بہت ضبط سے بولا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں پچھلے 10 سال سے اس کے ساتھ ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی تک کی ہر بات جانتی ہوں میں اس کے بارے میں۔ آئزہ بے حد ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اردل نے خاموشی سے اسے سنا اور غصے سے بولا، افسوس ہے کہ 10 سال سے وہ ایک دھوکے باز اور مکار لڑکی کے ساتھ اپنی خوشیاں، غم شیئر کرتی رہی، اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی رہی۔ تم اشال کی دوست نہیں، آستین کا سانپ ہو۔ سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلا دو وہ آخر پر ڈس ہی لیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مس آئزہ، اردل شاہ ہر ایک پر بھروسہ کر لیتا ہے؟ جس دن تم چہکتی میرے پاس آئی تھی نا، میں نے اس دن تمہاری آنکھوں میں اشال کے لیے بغاوت دیکھ لی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اردل کے ہوتے ہوئے اشال کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تم اپنی چال چلو جب تک چل سکتی ہو، وہ تم پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ میں چاہوں تو تمہاری ایک ایک بات ابھی جا کر اشال کو بتا دوں، پورے ثبوتوں کے ساتھ، لیکن میں چاہتا ہوں وہ تمہیں خود پہچانے، آج نہیں تو کل وہ تمہاری سچائی جان جائے گی۔ آئزہ کا رنگ لمحے میں اڑا تھا۔ میں یہ سب آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ آج تک وہ ہر میدان میں مجھ سے آگے رہی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب نہیں۔ آئزہ مختلف کیفیات سے انکشاف کر گئی۔ اردل نے آنکھیں بند کی جیسے سارا غصہ اپنے اندر اتار رہا ہو۔ اردل، آئزہ نے دھیرے سے پھر سے پکارا۔ اردل نے اسے غصے سے دیکھا۔ ایسا کیا ہے اشال میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اردل استہزائیہ مسکرایا۔ جانتی ہو کیا نہیں ہے تم میں جو اس میں ہے؟ چلو بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اپنی عزت کرنا اور کروانا جانتی ہے۔ میری اشال باحیا ہے۔ اس نے میری اشال کہنا ضروری سمجھا کیونکہ وہ آئزہ کے دماغ کو درست کرنا چاہتا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ جس رشتے کو اپنا لے اسے مرتے دم تک مخلصی سے نبھاتی ہے، نہ کہ تمہاری طرح پیٹھ پیچھے وار کرتی ہے۔ اسے چھوڑ دو، فائز بھی اس سے محبت۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو، اپنی سوچ اور اپنی زبان کو لگام دو۔ اردل کا خون کھول اٹھا۔ اس کا نام کسی اور مرد سے جوڑا تو وہ ضبط کر گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں۔ اسی لمحے اشال اندر آئی اور اردل کو یوں آئزہ پر غصہ کرتے دیکھ کے وہ اشتعال میں آ گئی۔ تم کیوں میری دوست کے پیچھے پڑے ہو؟ آئزہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اردل کی طرف اچھالی۔ اردل نے اشال کو دیکھا اور صرف اتنا کہہ کر چلا گیا، اس جمعے کو ہماری شادی ہوگی۔ اشال اسے ہونکوں کی طرح دیکھتی رہ گئی، جبکہ آئزہ شدید غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ اتوار کا دن تھا اور آئزہ صبح کے 10 بجے باہر کیفیٹیریا میں بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک شخص آنکھوں پر گلیئرز لگائے آئزہ کے سامنے آ بیٹھا۔ سلام، اس شخص نے مسکراتے ہوئے سلام لیا یا گویا فارمیلٹی پوری کی۔ آئزہ نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کہاں تھے اتنی دیر؟ وہ بیزاری سے بولی۔ کیوں اتنی بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا میرا؟ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر چڑانے والی مسکراہٹ تھی۔ آئزہ مسکرا دی۔ بالکل، آج جس مقصد سے بلایا ہے تمہیں، انتظار تو واقعی بہت تھا تمہارا۔ اشال دانش ملک۔ آئزہ نے دھیرے سے اشال کا نام لیا۔ صرف میری ہے، سامنے بیٹھا شخص اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ نہ جانے کتنوں کو پسند ہے وہ طنزیہ بولی۔ اس دن تو اس کا کچھ لگتا آ گیا اور روک گیا مجھے، ورنہ اس کے دل میں نے خوف پیدا کرنا تھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میری دوست بہت بے وقوف ہے۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کو جتنا مجھ پر اعتماد ہے، اس سے زیادہ میں اس کے دل میں اردل شاہ کے لیے نفرت پیدا کروں گی۔ ہر میدان میں وہ مجھ سے بازی لیتی رہی، ہر جگہ وہ جیتتی رہی، لیکن اب مزید نہیں۔ وہ جانتی ہی نہیں پچھلے 10 سالوں میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں کبھی اس کے ساتھ نہیں رہی۔ اس کو مس عائشہ کی نظروں میں گرانا، اسائنمنٹ خراب کرنا اور اس کے ساتھ ہوئی بہت ساری غلط چیزوں کی ذمہ دار آئزہ تیمور ہی ہے، لیکن وہ اندھے اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ سامنے بیٹھے شخص نے گلیئرز اتارے اور مسکراتا ہوا بولا۔ بہت چالاک ہو تم آئزہ، یہاں تمہارا مقصد نہ ہوتا تو تم کبھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ آئزہ مسکرائی۔ آف کورس مائی ڈیئر فائز، تمہیں اس کے پیچھے لگوانے والی بھی میں ہی ہوں، کیونکہ مجھے اردل شاہ چاہیے۔ شادی ہو بھی جائے ان کی تو ناکام رہے گی۔ فائز اٹھا اور دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکا۔ سچ کہتے ہیں تمہارا سب سے پرانا دوست ہی تمہارا سب سے خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ وہ سیدھا ہوا۔ خیر میں چلتا ہوں، ابھی مجھے ضروری کام ہے، باقی کا پلان تم جاری رکھو۔ عائشہ کے دل میں اس شخص کے لیے شدید نفرت پیدا کر دو، اتنی نفرت کہ وہ اس کی شکل کیا نام بھی سننا پسند نہ کرے۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا، جبکہ عائزہ ابھی وہیں بیٹھی تھی۔
आई एम सॉरी माई डियर आशी, लेकिन ये बात तुम जानती हो कि आयजा तैमूर अपनी खुशियों के लिए खुदगर्ज हो जाती है। उसने आंखें बंद की और गहरी मुस्कुराहट लिए उठ खड़ी हुई। गोल्डन टच के साथ कॉपर रंग का लहंगा, सब्ज रंग की हल्के काम वाली कुर्ती और हल्के गुलाबी रंग का कामदार दुपट्टा सर पर सजाए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों की चुटिया बनाकर एक तरफ से कांधे पर डाल रखी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें जो अपने कुदरती नीले रंग और लाइट मेकअप के साथ और भी पुरकशिश लग रही थी। हर नजर एक बार तो ठहरे बिना ना रहती। आयजा ने डार्क पर्पल पैरों तक आती लंबी फ्रॉक पहन रखी थी और सब्ज रंग का दुपट्टा गले में डाले खूब तैयार होकर आई थी। मेहंदी का फंक्शन चूंकि कंबाइन था तो अर्दिल और उसकी फैमिली भी आ चुकी थी। अर्दिल ने स्याह कुर्ता और कॉपर रंग की वास्कट पहन रखी थी। आयजा किसी काम से लाउंज में आई तो अर्दिल को देखकर ठहर सी गई। हसद का एक तूफान सा था जो आयजा के अंदर उमड़ आया था। इसके बरक्स आयजा को देखते ही अर्दिल के माथे पर बल पड़ गए। उसने एक नागवार नजर आयजा पर डाली और आगे बढ़ गया। इस रिएक्शन पर आयजा के अंदर जलने वाले हसद के कोयले में आग भड़की। खुद पर काबू पाते वो वापस इशाल के कमरे की तरफ चली गई। सरफराज अंकल और आंटी आ गए? इशाल ने आयजा को कमरे में आते देखकर सवाल किया। हाँ, आ गए हैं। और अर्दिल का नहीं पूछोगी? आयजा ने तंजिया अंदाज में पूछा। इशाल जानती थी वो अभी तक अर्दिल के रवैये की वजह से अपसेट थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। नहीं, मुझे इस सड़ियल लकड़ों के बारे में कुछ नहीं जानना। मगर अब तो वो सड़ियल तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। कब तक यूं ही भागोगी? आयजा बहुत जब्त से बोल रही थी। हाँ, जिंदगी में तो शामिल हो रहा है, मगर दिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। दिल तक तो मैं उसे कभी पहुंचने भी नहीं दूंगी, आयजा ने खुद से सोचा। क्या सोच रही हो? आयजा चौंकी। कुछ नहीं, बस देख रही हूँ मेरी दोस्त कितनी खूबसूरत लग रही है। कहीं नजर ना लग जाए इस खूबसूरती को। इशाल खिलखिलाकर हंसी। आज पूरे दिन में वो पहली बार हंसी थी और अब भी उसके हंसने की वजह आयजा थी। इस बात से बेखबर कि वो दोस्त जो इसे जान से ज्यादा अजीज है वो ही उसके सबसे बड़ी दुश्मन है। इशाल, मैं आती हूँ अभी। घर कॉल कर लूँ? अम्मी ने पता नहीं दवाई ली होगी या नहीं। मैं कहीं चली जाऊँ तो वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। जब उनके पास इतनी प्यारी और ख्याल रखने वाली बेटी मौजूद है तो उन्हें अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? आयजा मुस्कुराई और बाहर की जानिब बढ़ गई। आईने में देखते हुए इशाल ने अपने सरापे पर नजर दौड़ाई और गहरी सांस ली। किस्मत भी बाज औकात अजीब खेल खेलती है। जिस चीज की चाह ना हो वो अपने आप झोली में आन गिरती है, और जिसकी चाह हो उसके पीछा करवाते करवाते थका देती है। ओह, वो दुपट्टा पता नहीं कहाँ है जो आयजा मेरे लिए लाई थी। वो आयजा को देखने बाहर निकली ही थी कि उसकी आवाज सुनकर इशाल के कदम वहीं जंजीर हुए। हाँ फाइज, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना बहुत हद तक काम कर चुकी हूँ। इशाल ने खुद एतराफ किया है कि अर्दिल उसके दिल तक कभी रसाई हासिल नहीं कर सकेगा। उसकी अपने दिल की बदगुमानी मेरा काम आसान कर रही है। मैं उसके दिलो दिमाग में अर्दिल के खिलाफ ऐसा जहर भरूंगी कि वो कभी समझौते को सोचेगी भी नहीं। बहुत जल्दी हम दोनों को का रास्ता हमवार होने वाला है। इशाल को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा हो। वो लड़खड़ाई तो साथ पड़े टेबल का सहारा लिया, जिस पर पड़ा गुलदान नीचे जा गिरा। वो अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर दिल किस बात पर दुखता है। आयजा गुलदान टूटने की आवाज पर एकदम पलटी। इशाल को देखकर उसकी सांस रुक गई, मगर वो खुद को संभालते हुए इशाल की तरफ बढ़ी। क्या हुआ इशाल, तुम ठीक तो हो? मुझे आवाज दे देती। इशाल ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रुकने का कहा। शट अप, एक कदम भी मेरी तरफ मत बढ़ाना। इशाल तकरीबन चीखी थी। अर्दिल जो उसे मिलने ऊपर आ रहा था, सीढ़ियों पर ही इशाल की आवाज सुनकर तेज तेज जीने पलांगता वहां पहुंचा। इशाल को इस कदर गुस्से में देखकर उसे एक मिनट भी न लगा समझने में कि यहाँ क्या हुआ है। वो इस बात से बेखबर थी कि अर्दिल वहां मौजूद है। इशाल, तुम गलत सोच रही हो। जो तुमने सुना वैसा कुछ नहीं है। आयजा ने अपनी सफाई पेश करने की एक और नाकाम कोशिश की। जो मैंने सुन लिया वही काफी है। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ। आयजा ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। प्लीज मेरी बात, दूर रहो मुझसे। इशाल ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। तुमने खुद को नहीं बल्कि मुझे ही मेरी नजरों में गिरा दिया है। पता है क्यों? क्योंकि मेरा इंतखाब गलत था और मैं अपने इंतखाब पर सख्त शर्मिंदा हूँ। आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इशाल की आवाज कांप रही थी। दर्द इतना था यूं लगता था जैसे खून रगों से नुचड़ रहा हो। मेरी बात तो सुन लो इशाल। खबरदार, खबरदार जो मेरा नाम अपनी जुबान से निकाला। मुझे माफ कर दो प्लीज। आयजा ने अपने आंसुओं से एक और वार करना चाहा। माफी? किस बात की माफी? वो तंजिया मुस्कुराई। माफी गलती की होती है आयजा बीबी, गद्दारी की नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी माफ किया। इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना। और प्लीज अब यहाँ से चली जाओ, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना।
इस सब के दौरान अर्दिल खामोश रहा, मगर अब इशाल की हालत गैर हो रही थी। उसने इशाल को सहारा दिया और कमरे की तरफ बढ़ा। सुना नहीं तुमने? इशाल ने तुम्हें जाने का कहा है। निकल जाओ यहाँ से। आयजा को साकित देखकर अर्दिल दबा दबा सा गुर्राया। उसे कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाया। बेड साइड टेबल पर पड़े जग से पानी का गिलास भरा और इशाल की तरफ बढ़ाया, जिसे बामुश्किल उसने एक घूंट पिया। अचानक अर्दिल के दिमाग में कुछ आया। वो करंट खाकर पलटा। लाउंज में जाते ही वो सरफराज साहब को तलाश करने लगा। बहुत कम मेहमान थे। रस्म शुरू होने में कुछ वक्त था तो सभी इधर उधर बैठे बातों में मसरूफ थे। आयजा इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो साथ वाले कमरे में बैठी अर्दिल के जाने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलकर बंद होने और कदमों की चाप से वो जान गई थी कि अर्दिल जा चुका है। वो दोबारा इशाल के कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर जाते ही उसने फिर से अपना ड्रामा जारी रखने की कोशिश की। दोस्त होने के नाते एक बार मेरी बात सुन लो। दोस्त थी, मगर इसे भी मैं अपनी गलती कहना ज्यादा बेहतर समझूंगी। खुद को दोस्त कहकर दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते की तौहीन मत करो। दोस्त धोखेबाज नहीं होते। आयजा, असल में धोखेबाज दोस्त हो ही नहीं सकते, और तुम कभी भी दोस्त थी ही नहीं। बार बार मुझे याद दिलाकर शर्मिंदा मत करो। मुझे उस वक्त पे पछतावा है जब मैंने तुम्हें अपनी दोस्त बनाया। तुम्हारी गद्दारी ने मुझे इतनी तकलीफ दी है जितनी मुझे बाबा की याद आने पर होती है, या शायद उससे भी ज्यादा। इशाल ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले बता देती तो क्या तुम अर्दिल को मेरे लिए छोड़ देती? इशाल को एक बार फिर अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो उसे चोट पे चोट दे रही थी। अफसोस है आयजा, 10 साल से मेरा साथ होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ नहीं थी। इसीलिए कभी तुमने मुझे समझा ही नहीं। तुम एक बार, सिर्फ एक बार आयजा मुझसे कहकर तो देखती, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे देती। मगर तुमने मुझे इस काबिल समझा ही नहीं। इशाल ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि आसिया बेगम अंदर दाखिल हुई। इशाल की सुर्ख होती आंखें और निढाल चेहरा देख के वो परेशान हो गईं। इशाल बेटे, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इससे पहले कि इशाल कुछ बोलती, आयजा ने बात संभाली। वो आंटी, बस इशाल कभी आपके बगैर रही नहीं ना, इसीलिए परेशान है। मैं काफ़ी देर से समझा रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें, वो ठीक है। आसिया को तसल्ली ना हुई, मगर आयजा की बात पर वो भी इशाल ही की तरह आंखें बंद करके एतबार करती थी। इशाल बेटे, आपसे कुछ बात करनी थी। इशाल ने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा जैसे कह रही हो, जी करें बात। दिल चाह रहा है कि निकाह आज ही कर लें। आयजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इशाल ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था, मगर आंटी, आसिया ने उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है, अभी इशाल की हालत आपके सामने है, ऐसे में निकाह होना। इशाल आयजा की डिटाई पर हैरान थी। उसने एक नज़र आयजा की तरफ डाली और उसकी आंखों में देखकर बोली, जी मामा जान, मुझे मंजूर है, जैसे आपको मुनासिब लगे। आंसुओं का एक गोला सा इशाल के हलक में फंसा था। आसिया बेगम ने उसे गले से लगाया, माथे पे बोसा दिया और कमरे से निकल गईं। अब आयजा के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था, तो वहां से चले जाना ही मुनासिब समझा। मौलवी साहब आ चुके थे। निकाह शुरू किया गया। इशाल मलिक बिनते दानिश मलिक, आपको अर्दिल इब्ने सरफराज शाह 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल हैं? शादी और अर्दिल शाह तुमसे? इम्पॉसिबल। कबूल है। मैं कैसे इनकार कर दूं मामा को इस शादी से? कबूल है। हाँ, जिंदगी में तो शामिल हो रहा है, मगर दिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। कबूल है। मुबारक हो। वहां मौजूद सभी लोग बारी बारी अर्दिल से आकर गले मिल रहे थे और मुबारक दे रहे थे। अर्दिल काफी पुरस्कून दिखाई दे रहा था। उसके बरक्स इशाल बेतासुर चेहरे के साथ मुबारकबादें वसूल कर रही थी। कुछ देर बाद उसे कमरे में लाया गया। वो बिना किसी से बात किए चेंज करने चली गई। वापिस आई तो किसी ख्याल के तहत बेड साइड टेबल की दराज से एक एल्बम निकाला और तस्वीर देखने लगी। खुद को कहीं दौड़ते, कहीं हंसते, कहीं दानी साहब की गोद में तो कहीं कंधों पर देखकर इशाल की आंखें भर आईं। बाबा देखे ना, आपके बेटे के साथ क्या हो गया। बाबा, मेरा क्या कसूर था? मैंने आयजा को हमेशा सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि बहन की नज़र से देखा था। वो हमेशा से मेरे बहुत करीब रही है, मगर इसने क्यों किया ऐसा? वो मुझसे शेयर तो करती एक बार। शी ब्रोक मी बाबा, शी ब्रोक मी। मैं मामा जान से भी शेयर नहीं कर सकती। वो पहले ही मेरे दूर जाने की वजह से परेशान है। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं बाबा, मेरे पास सिर्फ आयजा ही थी। उसकी आवाज़ अब हिचकियों में बदल रही थी, और वो इस बात से बेखबर कि आयजा बेगम जो उसे खाना खिलाने आई थी, कमरे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। वो हमेशा से ही एक दूसरे से आंसू छुपाने की कोशिश में इनमें से कोई एक दूसरे को आंसू बहाते देख लेता था। वो चुपचाप वापस चली गईं। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इशाल से बात कर सकें। उन्होंने ये कहकर नसीमा के हाथ खाना भिजवा दिया कि कल बहुत से काम देखने वाले हैं और वो मसरूफ़ हैं। आज इशाल और अर्दिल की बारात थी। हर तरफ खुशी का समा था, पर कुछ लोग जो हसद की आग में जल रहे थे, वो ना चाहते हुए भी इस फंक्शन में शामिल हो रहे थे।
इशाल ने आयजा से रिश्ता खत्म करने के बाद उसे साफ लफ्जों में समझा दिया था कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जहाँ हर जगह आयजा इशाल के साथ होती थी, आज वो बिल्कुल अकेली थी। इशाल कल के वाक़ये के बाद खामोश हो गई थी, और वहीं अर्दिल उसकी खामोशी की वजह से किसी भी इजहार से कासिर था। इशाल ने पार्लर जाने से मना कर दिया था, इसीलिए इसको मेकअप आर्टिस्ट घर आकर तैयार कर रही थी। इसने इसने रस्ट रेड कलर का एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना था। मेकअप आर्टिस्ट ने इसके लहंगे और बारात के लिहाज से तैयार किया था। वो बेहद हसीन लग रही थी। उसकी नीली आंखें हमेशा ही तवज्जो का मरकज रहती थीं, और आई मेकअप के बाद वो मजीद पुरकशिश हो गई थी। मगर इसकी आंखें बेतासुर थीं, किसी भी जज्बे से खाली। वो जो ना मुस्कुरा रही थी और ना रो रही थी। आसिया बेगम ने उसे देखकर उसकी पेशानी चूमी और उसकी नज़र उतारी। इस सब के दौरान वो बुत बनी खड़ी रही। वो लोग हाल में पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद बारात आ गई का शोर मच गया। सब उनका इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। अर्दिल ने स्किन और रस्ट रेड कलर के कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहनी थी। बेशक वो वजाहत की मिसाल था, और आज अपनी असली संजीदगी के साथ वो और भी प्यारा लग रहा था। कुछ देर बाद इशाल को उसके साथ लाकर बिठा दिया गया। रमशा का बस नहीं चल रहा था कि वो इशाल को उठाकर फेंक दे। गुस्से से भरी इधर उधर फिर रही थी। अर्दिल ने आहिस्ता आवाज में इशाल को सलाम किया। इशाल ने भी उसी आहिस्तगी से जवाब दिया। कैसी हो? अर्दिल ने सवाल किया। कैसी हो सकती हूँ? उसने बेतासुर लहजे में जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया। खुश होना चाहिए, अर्दिल ने जवाब दिया। और वो क्यों? कल वाली वाकये के बाद भी? इशाल, क्या यह बेहतर नहीं हुआ कि उसका सच सामने आ गया? पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ मुझे तोड़ गया। वो दोनों सामने देखकर बातें कर रहे थे। अर्दिल कुछ कहने वाला था, तभी रमशा स्टेज पर आई। बहुत बहुत मुबारक हो मिस इशाल, वो जले दिल से तंजिया अंदाज में बोली। इशाल ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मैं रमशा, अर्दिल की कजन। उसने इसकी सवालिया निगाहों को समझते हुए अपना तारुफ करवाया। इशाल ने इस बात में सर हिलाया और थैंक्स कहा। खुश तो बहुत होंगी आप, आखिर इतना हैंडसम और ख्याल करने वाला मेरा कजन आपका शोहर है अब। अर्दिल के माथे पर शिकन आई। इशाल उसके रवैये को समझ नहीं पा रही थी, और ना ही वो समझना चाहती थी। आज दूध पिलाई की रस्म तुम करना रमशा। इशाल की कोई बहन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये उसकी बहन बनकर फर्ज निभाओ। अर्दिल ने इशाल का बदला लिया। रमशा का हलक तक कड़वा हो गया और कुछ कहे बिना पलट गई, जबकि अर्दिल मुस्कुरा कर रह गया, और इशाल ने दोनों को देखकर सर झटका। घर आकर आयजा ने सारी बात फाइज को बताई, और घर वालों से झूठ बोला कि इशाल की शादी डिले हो गई है। उसका निकाह हो गया है फाइज, आयजा परेशानी से बोली। फाइज चंद लम्हे बोल न सका। गुस्से और सब्र की मिली जुली कैफियत से उसने अपने आप को संभाला। अब आगे का काम मेरा है आयजा, तुम परेशान नहीं हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब जो फाइज करेगा वो सबके होश ठिकाने लगा देगा। तुम क्या करने वाले हो फाइज? आयजा उसकी आंखों में गुस्स और अजीब तासुर महसूस करते हुए बोली। जस्ट वेट एंड वॉच आयजा तैमूर, बहुत सब्र कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू। उसने शैतानियत से कहते फोन काट दिया, जबकि आयजा कुछ देर यूं ही मोबाइल को देखती रही। पता नहीं क्या करने वाला है ये। उसके दिल में खतरे की घंटी बज रही थी, लेकिन फिर सोचकर मुस्कुरा दी। जो भी करेगा हम दोनों का ही फायदा होगा। आह अर्दिल सरफराज शाह, क्या जादू किया है तुमने। तुम्हारे अलावा कुछ सूझता ही नहीं। अक्ल ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया है। उसने जोरदार कहकहा लगाया। इशाल गुमसुम सी कमरे में बैठी थी। सबीहा बेगम उसे कमरे में छोड़कर दो चार बातें करने और दुआएं देने के बाद जा चुकी थी। कुछ देर वो यूं ही बैठी इधर उधर देखती रही। किसी नई जगह पर आसिया के बगैर रहने का ये पहला मौका था। वो काफी बेचैन और गैर आरामदासी लग रही थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। अर्दिल अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। चेहरे पे कोई तासुर ना था। कैसी हो? जैसी दोपहर में थी। फिर तो मसला है वाकई। इशाल ने उसे घूरा, मगर बोली कुछ नहीं। इशाल, जो हुआ उसमें तुम्हारी बेहतरी थी। अच्छा हुआ वक्त से पहले तुम उसकी हकीकत जान गई। जख्म गहरा है मगर भर जाने वाला है। तुम बहुत अजियत से गुजरी हो, मैं जानता हूँ। कोई ऐसा शख्स जिसे आप जान से अजीज रखते हो, जब वो धोखा दे तो तकलीफ होती है। तुम कभी खुद को अकेला मत समझना इशाल। मैं हर हालत में तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतनी मजबूत हूँ कि इस तकलीफ से निकल आऊंगी, मगर जो धोखा दे उसकी तरफ दोबारा पलट कर भी नहीं देखती। उसने नरमी से इशाल का हाथ थामा। मैं जानता हूँ कि इस रिश्ते के लिए तुम तैयार नहीं थी। इस शादी के लिए हम दोनों राजी नहीं थे, लेकिन ये अल्लाह का फैसला था। हमारे मिजाज मुख्तलिफ हैं, हमारी आदतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हैं तो हम इंसान ही ना। मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन अपनों के लिए छुपा भी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने में, साथ चलने में,
لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم ایک آئیڈیل کپل ثابت ہوں گے۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت کا رشتہ ہو نہ ہو، عزت، وفاداری اور اعتبار کا رشتہ ہونا چاہیے۔ بس یہی میں تم سے چاہتا ہوں، اور یہ سب کچھ تمہیں میری طرف سے بھی ملے گا۔ وہ نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ وہ اس کے سحر میں مبتلا تھی، ایک دم چونکی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے، دل میں سوچا مگر کہا نہیں۔ پھر اسی کے انداز میں گویا ہوئی، انشاءاللہ بس ہفتے میں 2 دفعہ شاپنگ پہ لے جایا کرنا، اور میرے ساتھ روزانہ 2 گھنٹے باتیں کرنا۔ دان دکھاتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ سر جھٹک کے مسکرا دیا۔ واپس آئی تو کچھ دیر بیٹھی یوں ہی اردل کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں قرآن پاک کی وہ آیت آئی، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 216۔ اس کے اندر تک سکون سا اتر گیا۔ بہت بوجھ تھا جو ایک دم کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اگلے دن ولیمے کے بعد اشال اور اردل کو آسیہ کی طرف جانا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ دونوں ان کے ساتھ چلے گئے۔ اردل ولیمے کے اگلے دن جانا چاہتا تھا، مگر اشال بضد تھی کہ آج ہی جانا ہے۔ اس کی وجہ شاید وہ حادثہ اور پھر نئی جگہ رہنا دونوں ہی اسے مشکل لگ رہے تھے۔ اسے ہر دکھ اور سکھ کا وقت اپنے کمرے میں گزارنے کی عادت تھی۔ گھر پہنچ کر کچھ دیر آسیہ سے گپ شپ کی، پھر چینج کرنے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آسیہ اردل سے مخاطب ہوئی۔ اردل بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو اور اشال کا خیال بھی رکھو گے۔ اشال کو لے کر مجھے اب بھی تم وہی بچپن والے اردل ہی لگتے ہو۔ اس کی بابا کی ڈیتھ کے بعد سے یہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی سب کچھ اندر ہی چھپا کر رکھتی تھی۔ شاید وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں کچھ محسوس نہیں کر سکتی۔ اور اب یہ آئزہ والا حادثہ۔ اردل چونکا۔ آپ کو بتایا ہے اشال نے؟ اس سوال پر آسیہ بھی حیران ہوئی، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اس بات سے انجان سمجھ رہے تھے۔ نہیں، اشال نے خود نہیں بتایا، مگر میں نے مہندی کی رات اس کی باتیں سن لی تھیں جب وہ اپنے بابا سے شیئر کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنا دکھ انہی سے شیئر کرتی ہے، بھلے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر اشال انہیں اپنے پاس محسوس کرتی ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اردل سے پوچھنا ہی بھول گئی تھی کہ اسے آئزہ کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ آنٹی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اشال کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ کوشش کروں گا کہ اسے کبھی میری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کا اچھا دوست بنوں گا تاکہ وہ کبھی مجھ سے کچھ بھی چھپائے نہ اور اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکے، تاکہ میں اسے ہر مشکل سے نکال سکوں۔ اردل کی باتوں نے آسیہ کو اندر تک سکون سے بھر دیا۔ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ جاؤ بیٹا، اب آپ بھی آرام کرو، کافی تھک گئے ہوگے۔ اردل نے سر ہلایا۔ جی آنٹی ٹھیک ہے، آپ بھی آرام کریں، شب بخیر۔ وہ یہ کہہ کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دی۔ جی آ جائیں۔ اردل اندر داخل ہوا۔ اشال نے اس کے کپڑے نکال کر رکھے تھے۔ وہ بغیر کوئی بات کیے فریش ہونے چلا گیا۔ اشال چیزیں سمیٹ کر کچن کی طرف گئی۔ رات کو کافی پیے بغیر وہ نہیں سوتی تھی۔ پتہ نہیں اردل اس وقت کافی پیتا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر کافی بنائی اور 2 مگ لیے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو اردل سامنے کھڑا ریک سے کوئی بک اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر چونک کر مڑا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے مگ دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم بھی رات کو کافی پیتی ہو؟ ہاں بھائی، مجھے کافی پیے بغیر نیند نہیں آتی۔ چلو کچھ تو مشترک ہے ہم میں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اشال نے آج اسے پہلی بار ایسے ہنستے دیکھا تھا۔ تم ہنس بھی لیتے ہو؟ اردل نے ایک اور کہکہا لگایا۔ ہاں بھائی، کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ اس وقت شک ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہیں سڑیل اور اکڑو مزاج ہی دیکھا ہے۔ ہاں، وہ تو تم سے ملاقات ہی ہمیشہ ایسی سچویشن میں ہوئی ہے۔ اب کے بار اشال خاموش رہی اور مگ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ویسے مطالعے کی چوائس اچھی ہے تمہاری۔ اشال اسے بظاہر غور سے دیکھتے کسی سوچ میں گم تھی، اسی لیے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اس کی صلاحیتیں اسے باقیوں سے منفرد بناتی تھیں۔ وہ سامنے والے بندے کو بات کرنے سے پہلے پرکھ لیتا تھا اور دوسروں کو مسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ ذہین، سنجیدہ اور خاموش طبع، صاف گو اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا اردل سرفراز شاہ، جس کی ڈکشنری میں مرد عورت کو عزت، اعتبار اور وفا نہیں دیتے، وہ مرد نہیں ہوتے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے پہلی بار تم سے پروٹیکشن کا احساس تب ہوا جب تم نے مجھے فائز سے بچایا تھا۔ اردل مسکرا دیا۔ مگر ایک بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ تم فائز کو کیسے جانتے تھے اور میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے پتہ لگایا؟ آج کل یہ سب کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ دانش انکل کا بزنس میں اتنا بڑا نام رہا ہے۔ ان کے ایک بہت پرانے ورکر ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں، انہی سے تمہارے گھر کا ایڈریس لیا تھا۔ اوہ اچھا، وہ توصیف انکل، ہاں وہ بابا کے بہت وفادار ورکر رہے ہیں۔ ماما نے بتایا تھا ایک بار ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے آپ کا ذکر نہیں کیا کبھی ماما سے۔ اردل نے مسکراہٹ چھپائی۔ جی محترمہ، کیونکہ میں نے ہی انہیں منع کیا تھا۔
اور وہ فائز، اس کا کیسے پتا؟ کافی ختم ہو چکی تھی، اس سے بھی پرانی جان پہچان ہے، بتاؤں گا پھر کبھی، کافی لیٹ ہو گیا ہے، سونا چاہیے اب۔ وہ یہ کہہ کر بیڈ کی طرف چلا گیا، جبکہ اشال کا دماغ ابھی بھی الجھن کا شکار تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ آسیہ کے گھر سے وہ دونوں شام کو واپس آئے تھے۔ آج گھر میں ان دونوں کے لیے خاص ڈنر کا اہتمام تھا۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، ہلکی پھلکی گپ شپ چل رہی تھی۔ اور اشال بیٹا، کیسا رہا کل کا دن؟ بھابھی کیسی ہیں؟ جی انکل بہت اچھا، اور ماما جان بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ انکل لفظ کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے، آپ مجھے بابا بلایا کرو۔ اشال مسکرائی۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ یہ تو ناانصافی ہے بھائی، وہ بابا جان اور میں آنٹی، سب اس بات پر کھلکھلا اٹھے۔ نہیں بالکل نہیں، وہ بابا جان ہے تو آپ ماما جان ہوئی نا، اشال نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب ٹھیک ہے، صبیہ بیگم بھی مسکرا دی۔ اس سب میں رمشا ہی تھی جو چپ کر کے سب سن رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اشال کو اٹھا کر خود اردل کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بینچ لیں۔ ڈنر کے بعد اردل اور سرفراز نماز کے لیے چلے گئے۔ اشال کو صبیحہ بیگم نے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ اور کرنے کے لیے تھا نہیں تو ٹی وی دیکھنے لگی۔ اسے یاد ہی نہیں رہا آج اس کا فیورٹ سیریل آنا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ گھر آیا تو اشال بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور اس قدر مگن کہ ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اردل نے گلا کھنکارا، اہم اہم، لیکن اشال ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ محترمہ، لیکن نہ جی، اشال بی بی کو کیا خبر؟ اردل نے اس کے بال زور سے کھینچے۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ چیخی۔ اردل نے اسے گھوری ڈالی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے آوازیں دے رہا ہوں میں تمہیں، سنائی نہیں دیتا؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، ڈرامے سے ایک دم چیخنے کی آواز آئی۔ اشال فوراً ادھر متوجہ ہوئی۔ آہ شکر ہے مر گئی، ہائے شکر ہے۔ اردل نے اٹھ کر سوئچ بند کیا اور آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اشال نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ غصے سے بولی، لیکن وہ انجان بنا رہا اور موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ وہ اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مسٹر، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑاکا انداز میں بولی۔ اس نے منہ اوپر اٹھا کے ہاتھ کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا، جیسے کہہ رہا ہو مجھ سے؟ اشال غصے سے منہ پھلا کر آگے ہوئی۔ نہیں، تمہارے فرشتوں سے۔ اردل اسے اگنور کرتے ہوئے دوبارہ گیم کی طرف متوجہ ہوا۔ اشال نے پاس پڑا کشن اٹھا کر زور سے اسے مارا اور باہر بھاگ گئی۔ باہر غصے سے نکلی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہی جی، عادت سے مجبور، غصے میں کھانا کھانا۔ کچن میں جا کر کیبن سے بسکٹ نکال کر شیلف پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ بدتمیز، سڑیل، اکڑو، شوخا، القابات سے نوازتی وہ بسکٹس کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ اردل جو اسے دروازے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس کے پاس آیا۔ آپ نے میری بیوی کو دیکھا ہے کہیں؟ اشال نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، اسے جواب دیا اور منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں، اچھا ہے نہیں دیکھا، بہت سڑیل ہے، لڑاکی، جنگی جہاز، افلاطون۔ اس سے پہلے کہ اردل کچھ اور کہتا وہ چیخ اٹھی، اردل! اس نے زور سے کہا لگایا۔ جی بولو، میں ناراض ہوں تم سے۔ بتانے کا شکریہ۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کی۔ آج میں روم میں بھی نہیں آؤں گی۔ کوئی بات نہیں، کمرے میں آ جانا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ۔ بہت شکریہ آپ کا بیگم۔ وہ اسے مزید تپا رہا تھا اور وہ تپتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے بلا وجہ دیکھتا رہا۔ اشال کنفیوز ہو گئی۔ کیا ہے؟ وہ اپنی کنفیوژن چھپانے کے لیے بولی۔ وہ مسکرایا۔ کچھ نہیں۔ اسے آرام سے شیلف سے اتارا اور بسکٹ کا جار پکڑ کر کیبن میں رکھا۔ تھوڑا سا قریب ہوا۔ 5 منٹ میں کمرے میں پہنچ جانا، میں ابھی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ اس کی گال تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گیا اور وہ اسے جاتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا آدمی ہے یہ؟ ناک سکیڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک ہفتے کی چھٹیوں کے بعد آج اردل کو آفس جانا تھا، کیونکہ آج انٹرویو کے بعد سلیکٹ ہونے والے نئے ورکرز کا پہلا دن تھا۔ ان سب کو چیک آؤٹ کرنے کی ذمہ داری اردل کی تھی۔ وہ تیار ہو کر آفس پہنچا۔ اسے معلوم تھا کہ ان سلیکٹ ہونے والوں میں عائزہ تیمور بھی تھی۔ اس نے پہلے ہی اس کا ٹرمینیشن لیٹر بنوا کر اس کے کیبن میں پہنچا دیا تھا۔ وہ کیبن میں داخل ہوئی، ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ چیئر دھکیل کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ ٹیبل پر پڑے سفید لفافے پر نظر پڑی۔ ٹرمینیشن لیٹر۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ اشال نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا ہے، پہلے اردل کو مجھ سے چھینا اور اب میری جاب۔ ایک بار فائز اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے پھر دیکھتی ہوں کیسے یہ اردل کے ساتھ رہتی ہے۔ یوں ہی کڑتے ہوئے پیر پٹکتی اردل کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اردل نے بغیر اوپر دیکھے یس کہا۔ وہ عائزہ کی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ کیا ہے سر؟ عائزہ غصے سے گویا ہوئی۔ آہستہ آواز میں بات کریں، یہ آفس ہے میرا، آپ کا گھر نہیں۔ عائزہ نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ یہ ٹرمینیشن لیٹر کس وجہ سے؟ حالانکہ میں اپنے ٹیلنٹ بیس پہ سلیکٹ کی گئی ہوں۔ اردل طنزیہ مسکرایا۔ آپ کے ٹیلنٹ سے تو میں خوبی واقف ہوں۔ خیر، آپ کو اس جاب سے فارغ کرنے کی وجہ آپ جانتی ہیں۔ مزید اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، اب آپ جا سکتی ہیں۔
अर्दिल प्लीज मुझे माफ कर दें, जो कुछ मुझसे हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इशाल ने आपको माफ कर दिया था, इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ। जिसे अपनी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल ना हो वो दूसरों की क्या इज्जत देगा। मगर ये जॉब आपको नहीं मिल सकती मिस आयजा तैमूर। जिस शख्स को देखकर या उसकी किसी भी बात से इशाल को कोई तकलीफ हो, मैं उसे हरगिज अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप प्लीज जाएं आप, वरना मुझे अपने तरीके से भी भेजना आता है। मैं यहाँ किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता। आयजा समझ चुकी थी कि अर्दिल किसी सूरत में अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए चुपचाप वहां से चली गई। अब उसकी आखिरी उम्मीद फाइज ही था, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि फाइज का प्लान सिर्फ इसकी अपनी जात के लिए है। उसे आयजा की कोई परवाह नहीं थी, वो महज उसे बहला रहा था। सुनो, आज तैयार रहना, बाहर डिनर करेंगे। मिस्टर जलाद के नाम से एक मैसेज उसकी स्क्रीन पे शो हुआ। रमशा और सबिया उस वक्त उसके सामने बैठी थी। बिल्कुल नहीं, आज मेरा ड्रामा लगना है। इशाल ने उसे रिप्लाई देकर मोबाइल लॉक किया। चंद सेकंड बाद दोबारा मैसेज आया, 8 बजे टेबल बुक्ड है। इशाल का दिल किया वो सामने हो और वो कोई चीज उसे दे मारे। मैंने नहीं जाना, उसने फिर से रिप्लाई दिया। सबिया किसी काम से जा चुकी थी, जबकि रमशा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर रही थी। स्वीट हार्ट, मुझे ना पसंद नहीं, सो बेटर टू बी रेडी एट 8 o'clock। हो ही जला तुम, आयशा ने साथ गुस्से वाली इमोजी भेजी। ओनली फॉर यू लेडी, साथ दांत दिखाता हुआ इमोजी वाला रिप्लाई आया। आयशा ने मोबाइल लॉक किया। तभी रिमशा बोली, क्या हुआ तुम्हें, इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है। इशाल ने चौंक कर उसे देखा। नहीं कुछ नहीं, उसने मुरव्वतन मुस्कुरा कर कहा। वो अब इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, आयजा की हकीकत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात है, बताओ, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ। रमशा सिर्फ इस मौके की तलाश में थी कि वो पहले इशाल के करीब हो, फिर इसके मुंह से कुछ ऐसे निकलवाए जिससे वो अर्दिल के दिल में बदगुमानी पैदा कर सके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इशाल नरमी से बोली। ओके, एज यू विश। रमशा कंधे उचकाती चली गई, मगर दिल ही दिल में उसे इशाल पे बेहद गुस्सा आ रहा था। बड़ी ही ढीठ है, अपने शोहर जैसी। उफ, मतलब मेरे कजन अर्दिल जैसी। रमशा ने खुद ही तौसीक की। इशाल सबिहा और सरफराज को बताकर बाहर जा रही थी, जहां आरदिल गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। रमशा इस चीज से बेखबर थी, वरना वो कबाब में हड्डी बनने से बाज ना आती। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो मुंह फुलाकर बैठी और गुस्से से दरवाजा बंद किया। अर्दिल मुस्कुराए बगैर ना रह सका। अस्सलाम वालेकुम, अर्दिल ने सलाम किया और गाड़ी स्टार्ट की। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब ऐसे दिया जैसे उस पर एहसान किया हो। इशाल गुस्से से बोली, यू नो व्हाट अर्दिल। नो आई डोंट, अर्दिल ने उसी के लहजे में जवाब दिया। तुम दुनिया के पहले शख्स हो जो मुझ पर हुक्म चलाते हो, वरना इशाल मलिक। हूँ, इशाल अर्दिल शाह, अर्दिल ने उसे टोकते हुए कहा। इशाल ने गुस्से से उसे देखा। हाँ, जो भी है, किसी की हिम्मत नहीं जो इशाल अर्दिल शाह पर हुक्म चलाए। वो रोमानी में उसके सही किए अल्फाज बच्चों की तरह बोल गई। अर्दिल ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। वो ऐसी ही थी, शुरू हो जाती तो चुप ना होती, और आज तो उसका फेवरेट ड्रामा लगना था, जो इस डिनर की वजह से उसे मिस करना पड़ रहा था, जिसका उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो बोलकर थक गई तो उसे देखने लगी। मैं कब से बोल रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे। इशाल मजीद आग बबूला हुई, मगर इधर हनूज इत्मीनान था। भूख लगी है, जवाब की बजाय उल्टा सवाल दागा गया। वो अच्छे से जानता था इशाल को गुस्से में बहुत भूख लगती है। इशाल ने बेबसी से उसे देखा। हाँ लगी है, वो दूसरी तरफ मुंह करके हाथ गुस्से से सीने पर बांध कर बोली। बस पहुंच गए, तब तक थोड़ी बहुत एनर्जी बचा लो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। वो अब पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर रहा था, जबकि इशाल उसे देखने लगी। क्या शख्स है ये। डिनर करके वो वापिस आए तो काफी टाइम हो चुका था। इशाल ने ईशा की नमाज अदा की, जबकि अर्दिल पढ़कर आ चुका था। इशाल ने जल्दी से अपना ड्रामा लगाया और देखने लगी, जबकि अर्दिल लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। उसे देखता हुआ बोला, तुम्हारा शैतान तो बड़ा फास्ट है। इशाल ने उसे घूरा। अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं ड्रामा देख रही हूँ, बाद में जवाब देती हूँ। अर्दिल ने तासुब से सर हिलाया। वो ड्रामा कम देख रही थी और रोज ज्यादा रही थी। अर्दिल ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा, ऑफ किया और साइड पर रखा। ये क्या बदतमीजी थी, वो चीखी। आहिस्ता यार, मैं काम कर रहा हूँ। वो दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। इशाल उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, मगर वो ऐसे लापरवाह बना हुआ था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने गुस्से से चादर अपने ऊपर ली और लेट गई। इतना वो इन दिनों में समझ चुकी थी कि वो जो कह दे वो करके छोड़ता है, और जिस काम से वो रोक दे वो काम दोबारा उस घर में नहीं होता था। उसने नाक सुखेड़ी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। बदतमीज, वो उसे अलकाबाद से नवाजती सो चुकी थी, और वो ये अलकाबाद न जाने दिन में कितनी बार उससे सुनता था और सिर्फ मुस्कुरा देता, उसके सामने नहीं, अकेले में। जब से इशाली इस घर में आई थी, वो खुद मुलाजमा के साथ ग्रोसरी के लिए जाती थी। खाना बनाने में वो भले अच्छी ना थी, मगर ग्रोसरी का खूब एक्सपीरियंस था।
आज भी वो इस सिलसिले में निकली थी। चीजें खरीदते वक्त वो मुसलसल महसूस कर रही थी कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा, मगर फिर इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। स्याह कपड़े से चेहरा ढके एक शख्स करीब आया। मिस इशाल मलिक साहिबा, अगर आप चाहती हैं कि अर्दिल जिंदा सलामत रहे तो उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दें, वरना फिर हम अपने तरीके से अलग करेंगे। चॉइस इज योर्स। वो इस कदर डर गई थी कि आवाज भी ना पहचान सकी। जल्दी से टोकरी धकेलती रश वाली जगह की तरफ बढ़ गई। मुलाजमा को बुलाया, बिल बनवाया और घर की जानिब निकल गई। घर पहुंचने तक उसने खुद को नॉर्मल किया ताकि किसी को शक ना हो। वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। कमरे में गई, जब फ्रेश होकर वापस आई तो इन नॉन नंबर से फिर अननोन नंबर से फिर वही धमकी अमेज मैसेजेस देखकर उसकी परेशानी में इजाफा हुआ। काफी देर यूं ही बैठी सोचती रही कि अर्दिल को बताए या ना, मगर किसी भी फैसले पर ना पहुंच सकी तो नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला और सर झटक कर उठ गई। रात का वक्त था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो टेरेस पे खड़ा कॉफी पी रहा था जब दबे पांव उसके पीछे अशाल आ खड़ी हुई। आ गई मोहतरमा। वो चौंक गई। आपको कैसे पता मैं आई? वो मुस्कुरा दिया। अफलातून आए और हमें खबर ना हो, इम्पॉसिबल। और ये क्या बोला? आप मेरी इतनी इज्जत कब से करने लगी? इज्जत तो दिल में होती है ना। आप कहूँ या तुम कहूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? दिल से तो मैं आपकी इज्जत करती हूँ ना। हाँ ठीक, और ऐसा इनकलाब कब आया? वो उसे मजीद तंग करने लगा। अभी 2 मिनट पहले, जब मैंने आपको आप कहा। वो नाक सुखेड़ कर रेलिंग से कमर टिकाकर उसके सामने खड़ी हो गई। और दिल, आप कितनी कॉफी पीते हैं? पता है इतनी ज्यादा भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। वो फिक्रमंदी से बोली। यार अब से थोड़ी पीता हूँ, ए लेवल्स की स्टार्ट की हुई है, अब तो आदत बन गई। नफ्सियात कहती है कि किसी आदत को अपनाना या छोड़ना हो तो 66 दिन बहुत होते हैं। यू मस्ट ट्राई दिस एट लीस्ट। वो आंखें घुमा के बोली। उसने कॉफी का कप खत्म करके पास पड़े टेबल पे रखा। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था। ये तंज था या वाकई नहीं पता था? दोनों। वो जाने लगी तो अर्दिल ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास किया और उसकी पुश्त अपने सीने से लगाई। हाथ रेलिंग पर रखकर उसके हाथों पर अपने हाथ रखे। मेरी अफलातून, इतना लड़ती क्यों हो? उसके कंधे पे थोड़ी टिका के आंखें बंद करते हुए पूछा। मैं कब लड़ती हूँ? आप ना वैसे काम किया करें ना। कैसे काम? अर्दिल ने हंसी रोककर पूछा। कोई भी नहीं। अच्छा, मामा से मिलने जाना है मुझे, बहुत दिनों से नहीं गई। उनका आज भी फोन आया था। उसने रुख मोड़कर अर्दिल से इल्तिजाइया कहा। अर्दिल ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। शक्ल तो ऐसे बनाई है जैसे कभी ना गई हो। वो आंखें टिमटिमाकर दोबारा बोली। प्लीज ना, प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा, ले जाऊंगा। उसने फौरन आंखें सही की और उसकी इस अदा पर हंस पड़ा। ड्रामा क्वीन। अच्छा चलें, अब अंदर सर्दी बढ़ रही है। वो उसके बालों को दोनों हाथों से थाम कर अंदर ले गई। उनकी शादी को महीना होने वाला था और वो लोग काफी हद तक एक दूसरों की आदतों से वाकिफ हो चुके थे। खैर, अर्दिल तो पहले से ही जानता था, लेकिन अब इशाल भी उसे समझ रही थी। और वो अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइज था और टाइम का बहुत ख्याल रखकर चलने वाला शख्स था, जबकि इशाल उसके बिल्कुल उलट थी। फजर की नमाज अदा करके वो फिर से सो गई थी। अर्दिल नमाज अदा करके कमरे में आया और उसे सोता पाया। इशाल, उठ जाओ, पहले वॉक कराओ फिर लेट जाना। और इसे सुबह वॉक करवाता था ताकि दिन भर की सुस्ती से दूर रहे, लेकिन वो रोज उसे यूं ही तंग करती। नमाज पढ़कर सो जाती। वो आता, इसे उठाता और जबरदस्ती वॉक करवाता। इन सब के दौरान वो उसे ढेरों अल्काबात से नवाजती, मगर वो भी अपने नाम का एक था। सुनी अनसुनी करके काम जारी रखता। अक्सर इसे आयजा की दुआ याद आ जाती। अल्लाह करे तुम्हें ऐसा शोहर मिले जो खूब वक्त के लिहाज से तुम्हें सूली पर लटकाए। लेकिन कमजोर पड़ने से पहले ही वो सर झटक के माजी से निकल आती। इशाल, उठ रही हो या उठाऊं मैं? वो धमकी देता बोला, जबकि इशाल मोहतरमा उठ तो चुकी, मगर वही आदत, उठते हुए भी लेटे रहना। सिर्फ 5 मिनट, उठ रही हूँ। वो हाथ बाहर निकालकर इशारा करती बोली। कुछ देर बाद अर्दिल दोबारा बोला। ओके, 3 मिनट रह गए हैं। इशाल गुस्से से उठ बैठी। मुझे लगता है अर्दिल, आप किसी वक्त में आर्मी में रह चुके हैं। इतना वक्त का पाबंद, बल्कि इतना तो आर्मी वाले भी नहीं होंगे। वो सर झटक कर जाने लगा। इससे अच्छा तो किसी आर्मी वाले से मेरी शादी हो जाती। वो अपनी धुन में बोलती उठ खड़ी हुई, मगर अर्दिल इन्हीं कदमों पर वापस पलटा। उसके बाजू को पकड़कर झटके से करीब किया। वो बामुश्किल अपना बैलेंस बरकरार रखते हुए उसे घूरते हुए बोली। क्या है? आज तो ये अल्फाज मुंह से निकाल ली हैं। आइंदा सोच कर बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे छोड़कर बाहर निकल गया, पर वो अपनी जगह मुंजमद रह गई। घर के पिछले हिस्से में जिम बनाई हुई थी, जहां अर्दिल इस वक्त मौजूद था। इशाल वॉक करने की बजाय वहां आ गई। अर्दिल इस वक्त तौलिए से अपना चेहरा खुश कर रहा था। वॉक की? वो इशाल की तरफ देखते हुए बोला। नहीं, मुख्तसर जवाब देके वो खामोश हो गई। वजह? मेरी मर्जी। वो कुछ देर पहले अर्दिल ने जो कुछ किया था उसकी वजह से उसे अपनी नाराजगी दिखा रही थी। वो चलता हुआ उसके करीब आया, ट्राउजर की जेब में हाथ डालता उसकी तरफ झुका।
स्वीट हार्ट, इतना गुस्सा नहीं किया करो। पहले बहुत स्मार्ट हो, गुस्सा करके क्यों खून जलाती हो अपना? आपको पता है अर्दिल, आप बहुत बुरे हैं, वो गुस्से से बोली। कोई बात नहीं, कभी ना कभी अच्छा लगने लगूंगा, उसके लहजे में जवाब दिया और उसके गाल प्यार से थपथपाता चला गया। हर चीज अच्छे से होनी चाहिए, प्लान कामयाब होना चाहिए। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सकोगे। मैं एक बार फिर से पूरी बात दोहरा रहा हूँ, गौर से सुन लो। फाइज ने एक बार फिर से पूरा प्लान दोहराया और फोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ आयजा की कॉल आ रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। फाइज, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे उस दिन। आयजा ने तंज किया। आयजा बीबी, थोड़ा सब्र करो, प्लान बनाने और उस पर अमल करने में वक्त लगता है। फाइज ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। हाँ लगाओ वक्त, जितना वक्त लगाओगे उतना ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। अच्छा, फिलहाल तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। उसने गुस्से से फोन काट दिया। दूसरी तरफ फोन बंद होते ही आयजा भी गुस्से और बेचैनी से लब काटने लगी। पता नहीं कब करेगा ये काम। सब घर वाले उसी वक्त नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। अचानक रमशा बोली, इशाल, वैसे तुम्हारी शादी को महीना और कुछ दिन हो गए हैं, तुमने अभी तक कुछ मीठा नहीं बनाया। यू नो अ ट्रेडिशन। वो कंधे उचकाते बोली। इशाल का नवाला हलक में फंस गया, उसे तो कुछ बनाना नहीं आता था। वो मुझे कुकिंग नहीं आती, इशाल शर्मिंदा सा बोली। अर्दिल ने एक गुस्से वाली निगाह रमशा पर डाली। क्या तुम्हें कुकिंग नहीं आती? वैसे इसीलिए मेरी मामा ने सब पहले ही सिखा दिया था कि अगले घर में बेटियों को शर्मिंदा ना होना पड़े। वो तंजिया बोली। इशाल इस वक्त हरगिज चुप न रहती अगर उसने आसिया बेगम से वादा ना लिया होता। वो जब से पानी पीने लगी, जबकि अर्दिल उसका चेहरा देख चुका था। कोई बात नहीं बेटा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? पता है, जब मैं इस घर में आई थी मुझे भी कुकिंग नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब सीखा। सबिहा हंसते हुए बताने लगी। तभी सरफराज साहब बोले, और इशाल हमारी बहू नहीं बेटी है, इसीलिए इन कामों की इसे कोई जरूरत नहीं। इशाल मुस्कुराते हुए देखने लगी, जबकि रमशा का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। पता नहीं क्या है इस लड़की में, जो ये पूरा खानदान इसके पीछे पागल है, वो खुद ही सोचने लगी। जबकि इशाल एक जताती नजर उस पर डालना नहीं भूली थी। तुम कब तक यहाँ हो? सवाल अर्दिक की तरफ से आया था। रमशा ने चौंक कर उसे देखा। मैं? ऑफ कोर्स तुम, क्योंकि और तो कोई नहीं यहाँ रहने नहीं आया हुआ। अर्दिल बड़े इत्मीनान से उसे पूछने लगा। सबिया और सरफराज दोनों उसकी आदत से वाकिफ थे। ये यकीनन इशाल का बदला लेने के लिए सवाल दागा गया था। क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ रहना बुरा लग रहा है? रमशा ने उल्टा सवाल किया। अर्दिल ने उसे हाथ से रोका। बिल्कुल नहीं, तो फिर ये सवाल क्यों? रमशा, पहली और आखिरी दफा समझा रहा हूँ, जब तक इस घर में हो अच्छे मेहमानों की तरह पेश आओ। तुमसे अच्छे मेजबानों की तरह हम पेश आएंगे। अर्दिल ने बगैर लगी लिपटी के उसे सुना दिया। इशाल उसे हैरत से देखने लगी। वो खुद को आज तक स्ट्रेट फॉरवर्ड समझती थी, मगर ये तो उससे भी आगे था। रमशा ने खामोशी से सर हिलाया, जबकि सबिया और सरफराज इस दौरान खामोश रहे। इशाल, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, जरा ढूंढ दो मुझे। अर्दिल इशाल से मुखातिब होते उठा और दोनों नाश्ता कर चुके थे। जी अच्छा। इशाल अच्छे बच्चों की तरह उसके साथ उठते हुए बोली और कमरे की तरफ बढ़ गई। वन थिंग मोर रमशा, विशाल को भाभी कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। वो ये कहकर कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि रमशा के गले का पानी बाहर आ गया। वो सॉरी करती अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि सबिहा और सरफराज तासुब से सर हिलाते रह गए। कमरे में आकर इशाल ने उससे फाइल का पूछा, जबकि अर्दिल उसे कंधे जबकि अर्दिल उसे कंधे उचकाकर कहने लगा कि कोई फाइल नहीं गुमी। तो बाहिर कह रहे थे कि उसके आगे वो चुप हो गई, यानी अर्दिल उसे जानबूझकर वहां से लाया था ताकि वो वहां खिफत महसूस ना करे। इशाल उसे देखती रही। वो गहरा सांस भरते उसके करीब आई। क्या हो तुम अर्दिल? जितना तुम्हें समझने लगती हूँ तुम उतने पेचीदा हो जाते हो। अर्दिल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। स्वीट हार्ट, मैं कोई मैथ्स का अलजबरा हूँ जो पेचीदा हूँ? तुम उससे भी ज्यादा पेचीदा हो। वो सर दाएं बाएं हिलाकर कहने लगी। तो समझ लो ना, एक दिन आ जाएगा समझ। वो उसे छेड़ते हुए कहने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके आगे आते बाल पीछे किए, हाथ उसके चेहरे के दोनों तरफ रखे। तुम मुझे हर शख्स से ज्यादा अजीज हो। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, यकीनन मेरी नजर में वो कुछ नहीं है। इशाल ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, मान, इज्जत, भरोसा और प्यार। आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है? वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। जितनी मजनू को लैला से थी, और जितनी फरहाद को शीरीन से थी, और जितनी पुन्नू को ससी से थी, और जितनी हिटलर को अपने दुश्मनों से थी। उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा, और जब उसको समझ आई तो झटके से पीछे हुई। हाँ, आप निहायत बदतमीज इंसान हैं। 100 बदतमीज मरे होंगे तब जाकर आप पैदा हुए होंगे। वो मुंह बसोरती बैठ गई। अर्दिल प्यार से उसका गाल थपथपाकर मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया।
اشال نے بے ساختہ آنکھیں بند کی۔ صرف ایک آیت اس کے ذہن میں آئی اور وہ شکر بجا لائی، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ سامنے سے ایک تیز رفتار کار سے بچاؤ کے لیے اردل نے گاڑی دائیں طرف موڑی۔ بیلنس نہ رکھنے کی وجہ سے گاڑی سائیڈ پر لگے درخت سے جا ٹکرائی۔ درخت کی شاخیں جو کافی پھیلی ہوئی تھیں، ایک شاخ کے سامنے کی طرف سے سر کے اندر دھنس گئی۔ گاڑی کے ٹوٹے شیشے بھی اسے جگہ جگہ سے زخمی کر گئے۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ دیر وہ ہوش میں کراہتا رہا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی آوازیں گم ہونے لگیں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ پاس پڑا موبائل بج رہا تھا۔ بابا کالنگ۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی۔ دوسری طرف ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر سرفراز صاحب لڑکھڑائے، مگر سہارا لے کر صوفے پر ڈھیسے گئے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بمشکل بول پا رہے تھے۔ پاس بیٹھی صبیحہ بیگم جلدی سے اٹھ کر قریب آئیں۔ کون سے ہاسپٹل؟ اشال جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، ہاسپٹل کا لفظ سنتے ہی تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ فون بند ہوا تو اشال جلدی سے بولی، کیا ہوا بابا؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اردل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں ابھی ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ اشال تو جیسے سکتے میں تھی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اسے زندگی عطا کرنا۔ صبیحہ بیگم رونے کے ساتھ ساتھ دعا مانگ رہی تھیں۔ وہ تینوں جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ صبیحہ بیگم سارے راستے مسلسل روتی رہیں، جبکہ اشال چپ چاپ باہر دیکھتی رہی۔ دل اندر سے خالی تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے کہ کسی ایک خاص کے کھو جانے کا ڈر ہمیں اندر سے خالی کر دیتا ہے، ہمیں توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سوچ کر ہر چیز بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ اشال بھی اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچے تو اردل کو ایمرجنسی لے جایا جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سر پر شدید گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے صورتحال نازک ہے۔ جب تک ہوش نہیں آ جاتا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صبیحہ بیگم رو رو کر بے حال ہو چکی تھیں۔ وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھیں۔ اشال ایک نظر اردل کو دیکھنے کے لیے مسلسل بضد تھی۔ ایمرجنسی روم کے دروازے پر لگے چھوٹے سے شیشے والے حصے سے بمشکل وہ اردل کے سر کا وہ حصہ دیکھ پا رہی تھی جہاں درخت کی شاخ اندر دھنسی تھی۔ وہ وہیں قریب ہی پڑے بینچ پر ڈھیسی گئی۔ اس سب کے دوران پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ، اندر زندگی موت سے لڑتا ہوا شخص، میرا محرم، میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، تو اس کی حالت پر اپنا رحم فرما، اسے ٹھیک کر دے۔ اے اللہ، اسے کچھ ہو گیا تو میں ختم ہو جاؤں گی، میرا وجود اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آج اسے شدت سے اردل کی اپنی زندگی میں اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر شاید قدرت اسے یوں ہی آزمانا چاہتی تھی۔ میرا رازدان، میرا ہمسفر، مجھے زندگی کی دھوپ سے بچانے والا شخص، زمانے کے سرد گرم حالات میں میرا ساتھ دینے والا، میرا اردل، اسے ٹھیک کر دے۔ اس کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے اور سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ رب اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے بیٹا، جنہیں وہ اپنی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔ بس آئی گئی آزمائش میں صبر اور دعا کا سہارا لینا۔ وہ رب کبھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کے کانوں میں بہت پہلے کہی گئی اس کی ماں کی آواز آئی تھی، جس حالت میں صبر مشکل ہے اسی میں تو صبر لازم ہے۔ اشال منہ میں تسبیح اور مسلسل دعا کرتی جا رہی تھی۔ 12 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی اردل کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اشال بیٹا، کچھ کھا لو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ صبیحہ بیگم ہاتھ میں سینڈوچز لیے اس کے پاس آئی تھیں، مگر اشال نے کھانے سے انکار کر دیا۔ صبح سے اب تک وہ نہ جانے کتنی بار اردل کے سر کا صرف زخمی حصہ دیکھ چکی تھی، کیونکہ وہ صرف وہی دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ کیا حماقت کی ہے تم نے فائز؟ اگر اردل کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، فائز نے کہا لگایا۔ تمہارا یہ غصہ اور فکر اب بھی صرف اپنی ذات کے لیے ہے، اشال کے لیے نہیں، کہ اگر اردل کو کچھ ہو گیا تو تم اسے کھو دو گی۔ ہاں تو میں نے تمہیں کچھ ایسا کرنے کا کہا تھا جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہو، مگر تم خود غرض انسان، صرف اپنے بارے میں سوچا تم نے۔ اردل کو کچھ ہوا تو تم اشال کو پا لو گے، مگر میں کیا کروں گی؟ وہ دیوانہ وار چلا رہی تھی، مگر فائز پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عائزہ کی اس کیفیت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ میں اردل کو سب کچھ بتا دوں گی، دیکھنا پھر وہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ فائز نے ایک اور کہا بلند کیا۔ جاؤ جاؤ، خوشی سے بتاؤ، وہاں تمہاری بات کا یقین کون کرے گا؟ تم پہلے ہی اپنا سارا اعتماد کھو چکی ہو مس عائزہ تیمور، اور اگر وہ یقین کر بھی لیں تو انہیں اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ اس سب میں تم بھی میرے ساتھ شامل ہو، ورنہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ ایکسیڈنٹ فائز نے کروایا ہے؟ عائزہ نے تیز سے فون بند کیا اور زور سے دیوار میں دے مارا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر چیز ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ وہ اردل کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی، مگر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔
रात को 1 बजे अर्दिल को होश आया, मगर अभी भी वो गुनूदगी की कैफियत में था। सरफराज और सबिहा ने अर्दिल से मुलाकात की। इशाल भी वहीं बैठी थी, मगर खामोश थी। सरफराज साहब ने ड्राइवर को फ़ोन किया। सबिहा और इशाल को घर जाने का कहा, मगर इशाल ने यह कहकर मना कर दिया कि आप दोनों जाएं, आराम करें, मैं यहीं अर्दिल के पास रुकूंगी। बहुत दफ़ा कहने के बावजूद भी वो ना मानी। ठीक है बेटा, हम सुबह सुबह आ जाएंगे। अगर किसी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन कॉल कर देना। इशाल ने इस बात में सर हिला लिया। इनके जाने के बाद वो उठी और बेड पर उसके करीब बैठ गई। वो उसका हाथ पकड़े मुसलसल रो रही थी। आप इसीलिए मेरी ज़िंदगी में आए थे कि मुझे इस तरह परेशान करें। मुझे नहीं मालूम कि कब मुझे आपसे मोहब्बत हुई, मगर आज मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है। आई कांट लिव विदाउट यू। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तो तब भी मैं घोस्ट बनकर तुम्हारे साथ रहता। अर्दिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इशाल चौंकी। वो जाग रहा था, मगर शायद ये सब सुनने के लिए आंखें बंद किए रखी। आप सुन रहे थे? इशाल ने मुंह बनाकर कहा। चलो शुक्र है, इसी बहाने तुमने मुझसे मोहब्बत का एहसास तो किया, और अगर आज मैं इस हालत में ना होता तो शायद कभी ये इजहार ना सुन सकता। अब वो इशाल को तंग कर रहा था। वो तो मैं बस ऐसे ही जज्बात में कह गई। उसने जल्दी से इनकार किया और दिल हंस दिया। जैसे भी कहा, अब तो कह चुकी। अच्छा चलें, अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स ने आराम करने का कहा है और ज्यादा बोलने से मना किया है। इशाल ने जल्दी से बात खत्म की। अच्छा मोहतरमा, वो अपने सर में काफी दर्द महसूस कर रहा था। बाकी मामला तो घर जाकर तय करूंगा। उसने इशाल को अब सख्ती से आराम करने का कहा और आंखें मूंदे लेट गया। वो कुछ देर यूं ही देखती रही, फिर पास पड़े बेड पर लेट गई। 5 साल बाद अबरीश, अबरीश बेटा कहाँ हो? इशाल उसे ढूंढती हुई लाउंज में आई तो वो अर्दिल की गोद में बैठी कार्टून देखने में मसरूफ थी। मामा, आपने कहा था कि 5 बजे मुझे नूडल्स मिलेंगे। अबरीश मासूमाना अंदाज में आंखें मटका कर बोली। वो अभी सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। पहले तुम्हारे बाबा कम थे टाइम की पाबंदियां लगाने वाले, अब तुम भी सीख लो। इशाल कमर पर हाथ रखकर मसनूई खुफगी से बोली। 1 मिनट और गुजर गया, अब 5 मिनट रह गए हैं। अब्रिश कार्टून देखने के साथ साथ अपने हाथ में बंधी नंबर्स वाली घड़ी पर टाइम देखकर बता रही थी। अर्दिल ने मुस्कुराहट दबाते हुए अब्रिश को गाल पर बोसा लिया और उसे सोफे पर बिठाकर खुद इशाल की तरफ गया। बेगम साहिबा, अभी तो इब्तदा है और आप अभी से तंग आ गई हैं। 4 मिनट, अब्रिश ने एक और आवाज लगाई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहकहा लगाया। खत्म शुद्ध। सो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। बहुत 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 अच्छी स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी बताएं, ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जो भी नावल आपको पसंद हो वो रीड कर सकूं। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।